ہے، حضور اقدس نے یہ فرمایا ہے، اب ان کے سٹانسز چینج ہو گئے ہیں، اب کافی فرق پڑ گیا، راجا منان ورگے بندے، ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ میں ਤੁਰੇ نام کسی کا نہیں لینا، لیکن میں کافی دیر پہلو ہی اس بندے نو ناپ لیا سی، اس لیے ایک شخصیت نو میں بھری پلاٹ سے کچھ 100 بندہ سنن ڈا سی، میں کہ تسی عالم ہے ہو لیکن تسی مردم شناس نہیں ہے۔ وہ اے بندے نو کوئی ویلیو دین والا بندہ جہدے نال تسی چڑھ کے بیٹھے ہو، اونوں اپنا نہیں ملا آیت الکرسی بھی نہیں آندی، افضل بڑاج نو آیت الکرسی نہیں آندی ہونی، پکی گل جی سن لو۔ آمدی ہے دیکھیو شارپ شوٹر کی والدہ جو ہے وہ سکھ نہیں تھی اور اس کے والد ਕਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। اچھا گل سنو، میری گزارش ہے، لیکن مرض کر رہا ہوں کہ راجے نے خود لائیو بیک سیکت ابرار تے آکھیا سی کہ دیکھیں میں نے تو کوئی سخت بات نہیں کہ ہمارے بیک ڈور رابطے بھی تو ہیں نا۔ ایک بندہ خود منن دیا منہ لائیو بیک کہ ساڈے بیک ڈور رابطے تے ہوندے نے، ساڈا کیوں نہیں کسے دے نال؟ اچھا میری گزارش ہے کہ ہن اس موضوع چ کخ نہیں ملنا، اینو بدل دیو پلیز۔ جی موضوع نہیں، وہ تو واٹر بھائی نے دسی گل تو ویسے کر رہے ہیں سر، وہ سر گل ہی ہو کر رہے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ خالد صاحب بات کیسے؟ جی بھائی بہت اچھے۔ میں صرف یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا، مگر جو ہدایات آن لائن پھر یا تو دینی نہیں چاہیے، تو آن لائن آ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کیا انسٹرکشن ہے کیا ہے۔ جب دیتے ہیں تو پھر جو عام احمدی جب دیکھتا ہے کہ ہمارے جیسے کوئی جو خاص لوگ ہیں وہ تبلیغ کرنے والے جو بول سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں، وہ بار بار ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو پھر جو عام طبقہ ہے اس کو نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندر سے کچھ ہے اور وہ شرارت کی غرض سے جاتا ہے یا وہ مجمع کو دیکھ کے تو تقریریں سننے کے لیے جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ ہے کہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بہت جو عام اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے وہ تبلیغ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی تقلید میں پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ان سے صلح کر رہے ہیں بار بار، یہ وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم بھی ان کے پاس چلے جایا کریں سمجھانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ایک بندہ سمجھتا نہیں ایسی سی غلاظت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جماعت پر کر رہا ہے، اور جماعت کو مخالفین کو یا پاکستان کے دشمنان کو ابھار رہا ہے کہ ایسے حرکتیں کرو جس سے جماعت کو وہاں سے ختم کیا جائے اور نقصان پہنچایا جائے، ایسے بندے سے جا کے مطلب وہ کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ کا منتخب نمائندہ ہے جس سے ہم نے جا کے بات کرنی ہے کہ دیکھو تم نے ایسے بات کی تو اب نے ایسے بات کرنا، یا وہ یو این او کو ممبر ہے، ہم لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور پھر اس کو بلاتے ہیں، پھر اس کی باتیں سنتے ہیں، وہ پینترے بتا ہے گرگڑ کی طرح، تو وہ بندہ جو گرگڑ کی طرح رنگ بدلے اس کے ساتھ قطعاً میرے خیال بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ اس کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے ہمیں، نہ اس کے کسی اور چیز اکابرین کو گالی دینی چاہیے، ہم نہ گالی دیتے ہیں۔ بات یہ نیچے بیٹھے ہوئے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میں بول رہا ہوں اور پیچھے میں کہاں سے کس پارٹی سے ہوں، یہ بھی آپ کی میں بیچ میں مکس ہوگی باتیں، مجھے مسلسل کرنی نہیں آتی کہ یہ بھی بات غلط ہے کہ جماعت کیا کر رہی ہے۔ جماعت عمومی ہدایت خلیفہ وقت دیتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھانے کے لیے مقرر ہے تو ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ مقرر کیا ہو کہ جاؤ افضل بڑیچ کو سمجھاؤ،
جماعت نے کسی نے نمائندے نے کہا ہو سمجھا کے دیکھ لو، تو اس وجہ سے بھی وہ راجہ صاحب گئے ہوں، مجھے نہیں پتا۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جنرلی یہ ہے کہ ہمیں وہ باتیں آن لائن نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسی ڈسکشن ایسے لوگوں کے اوپر کرنی چاہیے۔ وہ کتنے لوگ ہیں بھونکرے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جماعت کے اوپر نقصان پہنچا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کبھی ان کو منع کر سکتے ہیں یا ان کی زبانیں پکڑ سکتے ہیں؟ آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ گند اچھالنے والی لوگ ہیں، کیا ہم ان کی زبانیں روک سکتے ہیں، ہاتھ روک سکتے ہیں ان کے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے بار بار ویسے لوگوں کو کریں؟ ٹھیک ہے ان کے راستوں پہ چھوڑ دیں، جب خدا بھی کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ تمہاری یہ باتیں تمہارے ساتھ، ہماری باتیں ہمارے ساتھ، تو ان کو فارغ کر دو۔ تو پھر جب وہ کامل وفادار ہو کے معافی مانگ کے آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا ہمیں بھی کہ کیسے وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ مجلسیں لگانا، پھر وہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، میں اپنا بتاتا ہوں، میں 2 سال سے ٹک ٹاک پہ ہوں، میں کبھی نیچے سنتا تھا، پھر کبھی جو مجھے بلا لیتے تھے، مگر میں جب دیکھا کہ ہمارے بزرگان بعض لوگ جو ہیں وہ میں ان کو اس رینک میں جماعت کے مقرر کردہ بزرگان نہیں کہہ رہا، جو تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ اچھے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ پتہ ہو، تو پھر ہم بھی کبھی کبھی سن لیتے ہیں۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسے نہ کرو، نہ ہی جاؤ ادھر، یہ نہیں کرو وہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں جواب نہیں دینا آتا تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں ایسے جو جن کو یہ ہم بڑا عالم فاضل سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگوں کو وہ ایسی ان کی عالمی فاضلیت تو اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، جس کو آپ اتنی اہمیت دے کے اور ان کی کر رہے ہیں۔ وہ جب ہم کوئی لفظ ایک بات کرتے ہیں افضل وڑیچ پہ یا ظفر اللہ شاہ پہ، تو وہ سیدھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اکابرین پہ گالیاں کرتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ غالب بھائی، آپ کا موقف آ گیا۔ تو اب دوسرا یہاں پہ اس ٹاپک کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اس براڈ کا سلسلہ یہ والا کہ یہاں پہ ہم نہ جماعت کی بات کرتے ہیں، نہ ہم یہاں بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں۔ آج صرف کچھ مقلدین آ گئے تھے تو وہ سلسلہ جماعت کا چھڑ گیا، ادروائز یہاں پہ جماعت کا نام لینے پہ بھی ہم نے پابندی لگا رکھی ہوئی تھی، لیکن آج پتہ تک کیا سلسلہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جماعت کی بات چل پڑی ہے، تو اس لیے اب میرے میں خیال اس آپ چیز کو اسی علی اکبر صاحب وہ ساری تبلیغ تربیتی سیشن سارا اج ہی کر دینا جے۔ وہی میں کہہ رہا بات کر دو، اوہ نہ ساڈی کی سزا ہے، اسی تے جماعت نال منسلک بھی نہیں۔ وہی بات نہیں کہ میرا خیال ہے ٹاپک کو بند کر دے اور آگے چل پڑی الہاد والے پاس سے۔ بیسیکلی ہم لوگوں کو اس وقت مولد بنا رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ الحمدللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ غالب بھائی کی، انہوں نے اتنی مجھے اس بات کی سمجھ آئی غالب بھائی کی کہ شاید حضور نے مقرر کیا ہے، راجہ منان کو شاید کیا ہو کہ فتح اس کو۔ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر کسی نے مقرر کیا ہوگا تو ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا۔ وہی نہ افضل ولیعت سے بات کرو چل کے، پتا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہہ رہا کہ مقرر کیا ہوگا۔ بات تو جو ہے نا، بات یہ ہے کہ جو محمد احمد صاحب نے بات کی تھی وہ بالکل حق بات تھی کہ اچھے برے اور دونوں قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی، ایک گھر میں پائے جاتے ہیں، اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس میں سے ایک بچہ اچھا ہوتا ہے، ایک برا نکل آتا ہے، تو یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یار یہ برائی ہے کسی جماعت میں یا کسی فرقے میں، تے آ کے وہ گلمہ پھاڑ لینا، تو نہیں جی نہیں، یہ بہتان تراشی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، پر اتنا لمبا تربیتی سیشن بھی نہیں ہونا چاہیے وہ نال دے بیٹھے جڑا ہے نا وہ بھی رنگ پھاڑ جان۔ سارے سیشن کے بعد ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، کون لوگ ہو تسی؟ کہ تم کتنے بڑے مخالف حضرت بھگوان صاحب انہاں پہلے لکھ کے لایا ہے کہ جتنے پہندے نے سارے دینی مریض۔ ماشاءاللہ صحیح لایا ہے، صحیح لایا ہے۔ واٹر صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں واٹر صاحب جی پتہ ہے سب کو میں کافر ہوں، نبی کو نہیں مانتا، تم کتنا حضرت میں اللہ کو مسیح نہیں موعود کے خلاف مانتا، بولتے ہو۔ مرزا صاحب کو گالیاں دیتا ہوں، سب کو پتہ ہے، اور کوئی نئی بات بتانی ہے تو وہ بتائیں، رسول اللہ کو دیکھو گالیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ تنگ تو نہیں نہ کر رہا، تمہیں آپ کوئی نے تنگ مجھے تو نہیں کر رہا کل واٹر صاحب آپ نے مجھے گالیاں نکالی، کوئی خدا کو بھی کر لو یار۔ اور پراوا میں گالیاں پچھلے 15-20 دنوں سے نہیں دے رہا۔ کل آپ نے نیچے کمنٹ میں مجھے گالی نکالی ہے، کیا گالی نکالی ہے بتاؤ مجھے، کیا آپ گالی؟ نے میں تو کل تمہیں کوئی کون سی میں براڈ پہ تھا، ایک سیکنڈ ویٹ کریں، ہاں مجھے لگتا ہے وہ میں احمد نذیر صاحب کی براڈ پہ بیٹھا تھا اور نیچے آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ تم خنزیر ہو، لکھا تھا نیچے،
ਔਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈਗਾ, यार खंजीर ही ਉਹਦਾ मुझे ਫਿਰਕਾ ਹੈਗਾ। खंजीर क्यों कह रहे थे? नहीं भाई मैंने आपको नहीं कहा, आपको गलती लगी है, लेकिन आप कोई जो बात है नहीं, वो mention मुसलसल करके- बहुत ज्यादा हमारी कोई जमात बात की नहीं, मुखालफत करते हैं। हम तवील से तफसीर से तशरीह से साबित कर देंगे ये बदल गाली है। देंगे बदल देंगे, हाँ कोई बात। और वैसे भी वाटर साहब आप दे भी लें गाली, मैंने कभी बदले में गाली आपको क्या, दिया तुम तो हजरत मसीह मौद को गालियां दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट मारूंगा आगे से। यार देखें, एक शख्स, मेरी बात सुने, एक शख्स अगर किसी अकाबिर पे, किसी नबी पैगंबर रसूल पे ईमान नहीं रखता ना, तो हाँ अगर वो नंगी गालियां दे रहा है, बकवासियात कर रहा है, फिर तो आप ये मौक़िफ़ रखें। अगर वो इतराज़ात कर रहा है, उनकी कोई अबारत लेके, उनकी कोई तहरीर लेके, तो जितना दिल एतराज़ वो करे, एक एतराज़ को दिन में 50 बार करे, उस पे आपका हक नहीं बनता कि आप उसको गालियां दें। अगर वो ये क्यों नहीं मानता है कि बनता? मैं उनके जो दावा जात नहीं हैं, बनता। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं अगर वो ये मानता है कि मैं कि उनके जो दावा जाते हैं या किसी भी नबी तू सारे पैगंबर के जो दावा खंजीरियों जाते के हैं, खंजीरियों से ट्यूशन लेके आ जाता है हुसैनी की ब्रॉडवे, और वहां पे बैठ के हाईजैक करके बाद में खंजीरियों से ही शाबाश ले रहा होता है। यार ये देखें, वो पहले चेक देते फिर थे। ऊपर से तू कह देता है, ऊपर सॉरी, से कह पहले देता है जी कि मैं ना अल्लाह को मानता हूँ, ना रसूल को मानता हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। काम तेरे सारे बरेलवियों और खंजीरियों वाले होते हैं। देखें वाटर साहब, तो फिर पहले हाँ। जमात अहमदिया से चेक लेता था, तो तब सरकारी कहते थे काम तेरे सारे मरज़इयां वाले ने, और तू तेरा एक्स काम अहमदी ने, पॉलिटिकल तू बल्कि नहीं है ही होता, अहमदी, जिसको तू कोई उन्हां दा चेक एजेंट मिले है। तेनू निरी शाबाश मिलेगी, चेक चुक तेरे वर्गे तो बंदे को नहीं मिलते। वो फिर इस बाहर इल्जाम लगने पे ना, फिर यही बिल्कुल ये इल्जाम फिर वो मुझे लगाया था फाइनेंस सेक्रेटरी ने। उसने कहा यार आपका काम तो क्वालिटी का है नहीं, तो बेहतर है आप कोई और घर तलाश करें। फिर मुझे मजबूरन अब सरकारियों पास जाना पड़ा। तो अभी अल्लाह का फजल है, अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, तो जब कभी कमी पेशी आएगी तो फिर आपसे रजू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, उसका अपना है, उसका अपना है, उसको तो मुझे लगता है थोड़े ज्यादा मिलते मेरे से। अजीब मनता क्या है यार, हमारे फिरके के खिलाफ जो बात करेगा वो हमारे दुश्मनों में से उसी साफ में खड़ा होगा। ये नहीं मनता क्या ऐसे। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? जो हमें मना भी करेगा और खुद मना नहीं होएगा, हम उसको भी पकड़ेंगे। अब तू राजा मनान साहब को मुझे अगली किसी ब्रॉड पे मिलने दे, तू देख मैं उनकी चूड़ी कैसे कसता हूँ। इंटरनेशनल सोशल मीडिया कमेटी जो बना के बैठे हुए ना, मुझे लगता है ये सब झूठ मार रहे हैं हमारे साथ बैठे। इनकी हालतें हैं सोशल मीडिया कमेटी के मेंबर बनने वाली, जेड़े आप सारे 2 नंबर वो है। कराची की वो जो मीम है, मुझे तो वाटर साहब वो याद आ गई। ये गवर्नमेंट बेच गई बड़वी, चूतिया बना रही मिलके हमें। मोहम्मद अहमद भाई अपने मीठे मीठे इस्लामी भाई चले गए हैं सारे। अब्दुल्ला बागर और उधर को डायरेक्ट फोन करके पूछ लो क्या आपने ये खत भेजा है। अहमदी भाई आए थे तो चले गए हैं सारे, या इधर ही हैं? माशाल्लाह जो आए थे काफी सारे मुखलिसीन मुकल्लिदीन सब चले गए हैं। अच्छा सब मर गए हैं। अगर मैं 2 नंबर हूं ना तो ये सारे ही 2 नंबर है, तो इसलिए क्यों अली साहब? जी सर जी अब्दुल्ला बागर और इधर से पूछ ले कि आपने ये खाते पे स्टैम्प की है भेजा है। कौन सा वाला है? एक हिदायत वाला है और एक मेरे मुकाते उसमें खराज थे, वैसे कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन कल कुछ उलमा बैठ के बोल रहे थे कि मेरा खराज हुआ है। वो जो खत वो बता रहे हैं उसमें खराज का लफ्ज़ कोई नहीं था। वैसे वहाँ पे सिर्फ दो अल्फाज थे, एक लिखा हुआ था कि इसके कौलो फेर से जमात का कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा ये था कि इससे चंदा ना। लेकिन वो उलमा कह रहे थे बैठ के कि जी इनका खराज हुआ हुआ, हमें चंदे की रसीद ला के दिखाए तो फिर हम मानेंगे। तो ये 2 खाते आप किसके बारे में कह रहे हैं, मैं तस्दीक करूं? अब्दुल्ला नहीं, साहब, एक जो वो आया था खत, इन्होंने पहले मार्केट में फेंका था कि जितने भी इंटरनेट यूज करते हैं सोशल मीडिया, वो सारे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मेल्डिंग कराएं। हाँ ये बाद में आया था मेरा ख्याल, उससे पहले बुजुर्गो ये हत्थ बाद ही चाहे ते जितने भी नहीं उन्हें लिखा है कि सिर्फ जर्मनी दे जेड़े जर्मनी दे सार्फिन ने ना, और वो अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करान। खत पे एक बड़ी मजेदार चीज है जो 10 तारीख वाला है ना, वो बड़ी मजेदार चीज है। उसकी पहली लाइन अगर कोई पढ़े ना, पहली
उस पे एक बड़ा अच्छा वाक़या पेश आया हुआ है और मैं हैरान हो गया कि यार ये ऑफिशियल लेटर है। जी जी, वो क्या इसमें था लिखा है जी? कि उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको एक लंबी और फाल जंदीग से नवाजे। आमीन। ये मैं कसम कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रहा। और यहाँ पे लिखना था उन्होंने जिंदगी, तो ये पहले कर दिया, गाफ बाद में कर दिया, तो वो बन गया जंदीग। गाफ है, काफ नहीं है, जंदीग। और ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल दफ्तर से है। हालते चेक करो। फिर कहते मोहम्मद अहमद इंज करता, मोहम्मद यार अहमद इंज देखें, वैसे मोहम्मद अहमद कुछ साहब नहीं कीता। फिर मैं ये कह रहा था, जैसे जिस तरह मिसाल के तौर पे कि जमात अहमदी अगर अपना कोई सेंटर बनाती है जापान में, जी तो उधर जो बल्लक का काम करने के लिए तबलीग का, अगर वो कोई शख्स छोड़ेगी ना, मतलब हाँ जी। कोई किसी को पॉइंट तो करेगी, हाँ जी तो वो जिसको पॉइंट करेगी ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जमात को सिद्के दिल से रिप्रेजेंट करे ना। हाँ जी और जमात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी जी जी जी, हाँ जी बोले जमात की बोले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी जो एक्टिविटीज हैं उन पे नजर रखे कि वाकई ये अपना मौकफ तो नहीं कहीं बीच में जड़ जड़ के लोगों को बताई जा रहा। और अब क्योंकि हाँ, सही है। टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत आ गई है, तो एक ऐसा सिलसिला या ऐसी एक तंजीम वो इस सोशल मीडिया के लिए भी होनी चाहिए ना उनकी, कि फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अली अकबर से बात की तो जमात के पास ये जवाब होगा कि भाई अली अकबर जमात का अपॉइंटेड बंदा नहीं है सोशल मीडिया पे। अगर आपने कोई बात करनी है, आपका कोई शिकाल है, कोई सवाल है, तो ये बंदा है जमात का ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पॉइंट हुआ है सोशल मीडिया, आप उससे बात करें। हाँ, अगर वो इस तरह का मौकफ दे तो हम आपकी बात मानेंगे, तो वो कितना ही आसान हो जाएगा, कितनी लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाएंगे। मतलब खुलासा कलाम ये बनता है कि अगर आम एक ऑर्डिनरी बंदा बात कर रहा है तो दूसरे भी पहले उससे पूछ ले, भाई आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हो तो फिर ठीक है हम करते हैं, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी पे नहीं हो तो हमने करनी नहीं है बात। इससे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं, गुफ्तगू नहीं हो हाँ सकती। जी, हाँ जी, बिल्कुल। और वैसे भी जो ये होता है ना बड़ा अच्छा निकालों है, से आज वक्त की होशियार, जरूरत है ये बनने की। तो वो भी हो सकता है एक मतलब क्या उसको कहते हैं, बेहतर सोल्यूशन हो जाएगा। कि अभी कोई बंदा, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, कोई सख्त न समझे, मिसाल के तौर पे जिस तरह मेरे बड़े प्यारे भाई हैं तलत साहब, अब तलत साहब अपने आप को मतलब वो अहमदी भी कहते हैं, मैं तो उनको अहमदी मानता हूँ, मिर्जा साहब पे ईमान भी रखते हैं। अब जो मौकफ वो देते हैं तो मेरे नजदीक तो ठीक है, एक अहमदी मौकफ दे रहा है, लेकिन वही मौकफ अगर मैं नासिर साहब के सामने रखूँ, नासिर साहब कहते हैं और नहीं नहीं वो अकल नहीं रखते, इल्म नहीं रखते। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही वो, होता है। अब जो मैं नासिर साहब का मौकफ अली अकबर साहब के सामने रखूं, ये कहेंगे नहीं नहीं नासिर साहब ही गलत है, मैं आपको नई बात बताता हूँ। तो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक बंदा होना चाहिए कि बड़ी जो सही पता हो बात कि ये की है खलीफा आपने। वक्त साहब ने, जी जी, हाँ, एक लिहाज से बड़ी सही बात की है। वक्त की ज़रूरत ये महसूस करा रही है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, इससे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। मगर अब ये सोशल मीडिया के साथ ये चीज़ें उजागर हुई हैं, और सोशल मीडिया से पहले तो हमारा ये एक नारा होता था कि हमारा बच्चा बच्चा ही मुबल्लिग है, हम सारे ही मुबल्लिग हैं, तो उसी कैपेसिटी में काम होता था। ये है, बात भी ऐसे ही है, हर किसी को शौक होता था, बात रखता था, बात नहीं करता था। मोहम्मद साहब, सोशल मीडिया का ऐप खुद बना के तो खुद अपना क्यों नहीं बना लेते? कौन अपना वो बनाते हैं, कई लोग जमात हैं, अहमदी। कईयों ने बनाया हो, तो किया तो है जमात ने, नहीं, किया तो कईयों ने अपना बनाया, लेकिन अपना प्रोफेशनल, जिधर उधर प्रोफेशनल ऑफिशियल भी जवाब है, मिले। ऑफिशियल भी है आपके, मतलब 70-80% वो आस्क अहमदियत जो है वो ऑफिशियल है। अब जो आप आम रोज़मर्रा पे जितने इतराज़ सुन रहे होते हो, हर एक का जवाब उसके ऊपर मौजूद है, वो ऑफिशियल है, वो ख़ास तबलीग के लिए ही है। नहीं, उधर मेरा बयान जवाब दे, प्रोफेशनल दे, अपनी और आईडी आप के ऐसा साथ दे। ऑनियर कल को अगर कह किसी रहे को हो। जवाब ओके, पे ओके, ओके। मसला है तो वो उसकी आईडी नंबर हो कि ये जवाब किस आईडी ने दिया है। नहीं हो जाएगा ये, अब जिस तरह के मसाइल आ रहे हैं मुझे तो ये फ्यूचर में लगता है रखा मोहम्मद ऐसे हो अहमद साहब के जमात भी ना स्मार्टली प्ले करती है। जाएगा। बहुत बहुत माशाल्लाह।
सॉरी मेरी शायद सिग्नल काम थे। मैं कह रहा था मोहम्मद अहमद साहब कि मुझे ये लगता है, यार आप लोगों आवाज ने आ रही फिर है? जमात की, यार भगवान साहब तो मौका ढूंढते हैं, जमात की बातें आप लोगों ने फिर शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल जमात क्या कर रही है, जमात को सुन लें जमात क्या कर रही है, जमात को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जमात जाने, उनका सिलसिला जाने। हम लोग कौन होते हैं ना 3 में ना 13 में कि हम लोग को मशवरे दें जमात को। इसलिए मेरा ख्याल है 3 में ना 13। वाह, हाँ जी, तो इसलिए मान यार तुम भी एमडी हो जाओ यार, वालेकुम अस्सलाम। गुजारो। चलें यार कोई और मौजूद रख लें, मौजूद कोई और रख लें। भगवान तुम भी इल्हाद पे बात कर सकते हैं कि अली अकबर साहब उस पे भी नहीं, मोनीटर तगड़ा है इब्तिदा। इल्हाद भी करें, लोगों को बुलाएं इल्हाद की तरफ, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान तुम्हारा हालांकि एमडी आप होने के लोग बारे में इल्हाद क्या को भी ख्याल है? छोड़ें, जो नबी है ना चीमा साहब और बुरहान साहब दोनों को बुला लें, उनका आपस में मुकाबला करवाते हैं। हाँ, अंबिया को बुलाएं। इल्हाद सबसे पुराना मजहब है, आप लोगों को पता है, सबसे पुराना मजहब है। और इसकी कैसी खूबसूरती है कि इंसान जब पैदा होता है तो मुल्हिद होता है, मौलिद बाद होता में है। लोग पकड़ के उसको कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते कुछ ना कुछ बनाते हैं, बिल्कुल। मैं कह हैं। रहा था वरना चीमा पैदा वो साहब का मुल्हिद हो इधर रहा है। मोहतरम फितरत, इल्हाद क्या चीज है? दीन फितरत है। क्यों भगवान भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और इधर वो बात की है सीसीडी साहब ने, मोहतरम हजरत चीमा साहब की सलातो सलाम। तो मैं तो उनको समझता हूँ कि वो एक जदीद और सेकुलर ज़ेन के क्या नबी तैनात किए गए हैं, शानदार शानदार। जो के मतलब मुनसिफाना बात कर रहे हैं, जिनने एक्चुअल में आके औरत को कुछ हकूक दिए भी हैं सुभान अल्लाह। कि अब इस जदीद दौर में औरतें भी नबूवत करेंगी। बोल लेने दें, आप बीच में माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल के हमारा दिन पहले से क्यों बना देते, उसे बोल तो ले। नहीं, चीमा साहब ने कहा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि अब रसूल अल्लाह की अताअत के ज़िम्रे में औरतें भी नबी बनेंगी। कितनी शानदार और उम्दा बात है कि आगे सिर्फ मर्द ही बनते आए हैं। तो ये इंसाफ तो ना हो अल्लाह तबारक ताला का। अब चीमा साहब के तवस्सल से औरतें भी बनेंगी। तो मुझे तो ये औरत बात किसे भगवान साहब, वो औरत अगर किसे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਹਦ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? नहीं, ये तो दाऊद साहब देखें, जेंडर हर किस्म के जेंडर में ये खराबी पाई जा सकती है ना। औरत में भी हो सकती है, मुलहद औरत हो सकती है, मर्द और मुलहद हो सकता है, ऐसे तो नहीं। लेकिन ये है कि ये बात तो चीमा वो साहब की पहले मुझे अपने बिल्कुल- घर से बाहर निकलेगी तो कुछ करेगी बेचारी। नहीं आप जैसा उसका मियाँ हो तो उसने घर से बाहर नहीं निकलने देना सवालों से। तो हो सकता है ना वो नबी भी ना बने। अल्लाह नबी चुनता है कि मैंने चुनना है, या मियाँ चुनता है कि जा मैं तेन बाहर निकलने की इजाजत पे देना, तू आई थी नबी बन जा। नबी और नबी तो अल्लाह चुनता है। तो अगर अल्लाह किसी औरत को नबिया बनाएगा तो उसके लिए वसाइल भी वो खुद पैदा करेगा। ये तो हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने किया है ना। हाँ जी, ये बात सही है। अल्लाह का वादा है, मैं और मेरे अंबिया गालिब आते हैं, अल्लाह बनाएगा तो गालिब भी कर देगा। हाँ बिल्कुल। बहुत अल्लाह बहुत। और आपने कहा कि औरत बाहर नहीं, अब तो निजाम बदल है दाऊद साहब, अब किधर वो निजाम रह गया, बाहर नहीं जाती ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਿਹਨਤ मूसा ने की मोहम्मद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਉਹ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। भगवान साहब, आपने लगता है मेरे 2-3 साल पुराने वाले टिकटॉक नहीं देखे हुए। ये नबी साहब ने तो अभी बताया है कि औरत नबी हो सकती है। मैंने तो कई सालों पहले, 10 साल पहले का मेरा दावा है कि औरत नबी हो सकती है। तो वैसे मैं तो माशाल्लाह वाटर Yeah, that's it. That's all. Thank you. चलो जी, मैं समझे और रिकॉर्डिंग। यू आर ओल्ड प्रोफेट। अब ये बात इधर ही रखिए, मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड प्लीज, आगे ना जाइए। चिकन टिक्का रैप प्लीज। As a meal? As a meal, yes. What drink? Do Coke. All right, thank you. अच्छा वाटर साहब, पता है क्या बात है कि ये इतराज़ आपका नहीं बनता। मैं उसकी वजह बताता हूँ।
जब कोई शख्स मिर्ज़ा साहब पे ये एतराज़ करता है ना कि ये हज़रत ईसा की वफ़ात वाली मिर्ज़ा साहब ने कौन सी नई बात बताई, ये तो पहले ही लोगों ने बताई हुई थी। यार आप लोग तो- फिर मिर्जा साहब की तरफ चले गए, बंदा खुदा अपनी बात नहीं करो मिर्ज़ा साहब की तरफ नहीं जा रहे यार, वो ज़िमनन बात आ रही है, हम चीमा साहब की बात कर रहे हैं। चीमा साहब की बात करें, सिर्फ जी चीमा जी, उन्हीं की कर रहे हैं, सिर्फ ये मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए नबूवत के सिलसिले को। मिसाल आप नबी पाक की दे देना। नबी पाक की भी चले बीच में ही रख लेना। तो उस वक़्त जवाब ये मिलता है कि मिर्ज़ा साहब का ये दावा है कि उनको अल्लाह ने बताया। क्या जिसको पहले पता था उसका भी ये दावा है कि उनको अल्लाह ने बताया? तो इधर आके वो फ़र्क आ जाता है। आपने बेशक बताया होगा, आज से 20 साल पहले कहा होगा कि औरत नबी हो सकती, लेकिन क्या आपको अल्लाह ने बताया था? चीमा साहब का तो ये दावा है कि अल्लाह ने ये राज उन पे खोला है, ये वही और इल्हाम उन्हें अल्लाह ताला से पता चला है। तो ये फ़र्क है ना आप में, और आपने नबूवत का दावा भी नहीं किया। चीमा साहब का नबूवत और रसूल का दावा है। सुबहान अल्लाह, बहुत आला तशरीह की है भाई भगवान साहब ने। सुभान अल्लाह कि आप पहले हमसे मोहम्मद अहमद भाई ने तो संभाले जाते हैं, भगवान भी मैदान में आ, ये तो आप किधर गए? नहीं ये मैं तो बात कर रहा हूँ जो असूल की। अगर आप असूल की बात करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। नहीं भगवान भाई, असूल तो यही है बिल्कुल। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है कि चेक करें कि उन्होंने अल्लाह ने उन्हें बताया या नहीं। जो वो बोल हाँ। रही हैं अपनी समझ में वो दुरुस्ती बोल रही हैं। और सेंस भी बनाता है ना, देखें सेंस भी बनाता है कि यहाँ तो बड़ी कोई लॉजिकल बात की हो, तो फिर तो बंदा कहे कि यार ये कैसा नबी हो, ये अजीबो गरीब सी बातें कर। जब बात इतनी लॉजिकल और इतनी ह्यूमन राइट्स के साथ मुंसलिक बात की है, तो फिर कौन कैसे कह सकता है कि यार ये गलत बात है ना। और उसके बाद या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम, भगवान भाई वो आज ये बाद में जाते हैं ना, इधर थोड़ा तो इस उस पे तो सांस लेते हैं कि इस चीज पे थोड़ा डिसएग्री हो जाते हैं कि सेंस बनती है कि नहीं सही है। बाकी उनकी जो जितनी भी बातें हैं उन्हें जांचने तो मेरे पास या किसी के पास भी पैरामीटर नहीं। जी भगवान भाई। भाईजान देखें, पैरामीटर नहीं होता, नबी की बात को पैरामीटर के तहत नहीं नापा जाता। नबी की बात का नतीजा बताता है। दुनिया में वो काम अल्लाह ताला जो है उसको गालिब इस तरह करता है कि अगर कोई नबी कह दे कि मैं देखता हूँ कि बारिश होगी, तो अल्लाह फिर वो बारिश बरसा देता है ताकि लोग जो हैं वो देख कर ईमान लें। इसी तरह अब चीमा साहब ने कह दिया है कि अल्लाह ने उन्हें बताया कि नबिया होंगी औरतें, तो अब आपके सामने देखिएगा औरतें नबी होने का दावा करेंगी इन करीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नहीं, अगर ना तो करें- पैरामीटर की बात कर रहे हैं। पैरामीटर तो होता है जब एक जमाने में दो नबी इकट्ठे दावा कर देते, एक कहता बारिश होनी है, दूसरा कहता मेरे अल्लाह ने कहा नहीं होनी, फिर वो उन दोनों के दो अल्लाह भी दो होते हैं। एक नहीं, कहता तू वो मर जाएगा, देखें- दूसरा कहता नहीं तू मर जाएगा। हाँ ये देखें ना, अब इस्लाम ने बड़ी खूबसूरती से इसका क्या उसको हाल निकाला है। इसको कहते हैं इज्तिहादी गलती। ये होती है अंबिया की, ये झूठे सच्चे की बात नहीं होती। ये होती है अंबिया को कई बार बाज़ औक़ात इज्तिहादी गलती लाग जाती। तो अगर एक कह रहा है कि बारिश होगी, एक कह रहा है नहीं होएगी, तो वो लफ्ज़ इल्हाम में बारिश ही आया होगा, तो एक ने समझ लिया कि बारिश होगी और एक ने समझ लिया कि बारिश नहीं होगी। पूरा जुमला नहीं आया होगा ना इल्हाम में। ते इल्हाम ही जड़ा बदो बदी चलो चली दा दौर है ना, अद्धा खड़दा कई बारी आ जाता। एक सेकंड आर्डर ले समझ भी नहीं आते। तो भगवान साहब इल्हाम में सिग्नल काटे जाते हैं। नहीं, इस पे भगवान भाई फिर मेरा भी ये सवाल है ना कि आप तो मैंने थोड़ा जो सुना है, आप अक्सर ये सवाल उठाते हैं। यस्टरडे जैसे आपकी नासिर भाई से बात हो रही थी कि जो हजरत मसीह मौला इस्लाम ने बताया वो पहले ही लोगों ने बताया हुआ था, और आपने बड़े रेफरेंस दिए, और सम तो बहुत पुराने रेफरेंस भी थे, 1200 समथिंग की ना। तो इसमें ये भी तो देखिए ना कि ये देखें अली अकबर साहब फिर मिर्जा साहब की बात ले आए यार, रोके पॉइंट। अच्छा पॉइंट पे इसलिए मैं ये पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि फिर चीमा साहब से पहले भी तो एक औरत जो नबियाँ हैं मेरे से 30-40 किलोमीटर दूर रहती हैं, वो तो ऑलरेडी उनका दावा था
اور پھر ایک بندے کو نظر آ رہا ہے کہ اب عورتیں شروع ہو گئی ہیں تو آگے بھی شروع ہوئیں گی. نہیں ڈیبرا کی ایک پرانی ہسٹری جاؤ, ڈیبرا نام دی نبیہ ہوئی ہے پہلوں. دیکھیں علی بھائی ہم بھائی نے میں اس پرانا پہ نہیں جانا, ہم نے صرف چیما یار صاحب یار اور آج میری کے دور میری پہ میری جانا. میری ایک بات سنو, میری ایک بات سنو. بھگوان بھائی آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میرا خیال 2 مقامات پہ بتاتا ہے کہ تمہیں اگر نہیں یقین آ رہا تو اہل ذکر سے پوچھ لو, اور جس میں ہم بائبل وغیرہ یہ سب کرتے ہیں نا ریسرچ, سب کو یہ آیت پتہ ہے نا تو پھر اب بائبل میں دیکھو, بائبل کا جو رسولوں کے اعمال ہیں, جو ایکٹس آف اپوسٹلز کے نام سے ہے, اس کی میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں. جو آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بائبل میں, خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, میں اپنے روح میں ہر بشر پہ ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, اور تمہارے جو جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ اب یہ 18ویں آیت ہے, بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. دوبارہ سنیں, بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. یہ ایٹم بم وغیرہ یہ چل رہے ہیں نا, بم چل رہے ہیں آسمان پہ, دھوئیں شوئیں ہو رہے ہیں آج کل, آخری دن چل رہے ہیں. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا, بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. قیامت کا ذکر ہو رہا ہے شاید. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اس پہ یہ تھی محمد بھائی سن لینا تھوڑا سا. صحیح ہے, یہ جی آپ نے بڑی اچھی باتیں سنائی ہیں, اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ ایسے ہی پوری ہوئیں گی جیسے بیان ہوئی ہیں. پر یہ ساری علی صاحب ایک بات رکھنے میں سوری چھوٹی سی, اگر ایسے نہ بھی پوری ہوئی نا ہو بہو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اس کی تمثیل, اس کی طویل وہ اس سینس میں کر دی جائے گی کہ یہ پوری ہو ہی جائیں گی, وہ بے فکر ہو جائیں. نہیں میرا یہ یاویل بک آف جوئل یہ پڑھتے ہیں. سن تو لے محمد احمد بھائی, آپ پڑھیں میں آپ بولے, میں بس ڈھونڈ رہا ہوں, آپ بولے. کہ یہ ساری باتیں ہیں بنی اسرائیل والوں کے لیے, اگر تو سچی ہیں ان میں یہ ایسے ہی پوری ہو جائے گی. جی محمد احمد ٹھیک ہے. اچھا جی, یاویل چیپٹر جو ہے 29 بائبل کا, جماعت احمدیہ کا جو نام ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے مرزا صاحب کے الہام کے مطابق. ہاں جی, پر آپ اس کو نیگیٹو سینس میں کیوں لیتے ہو, پازیٹیو کیوں نہیں لیتے؟ میں تو پازیٹیو لے رہا ہوں, یہ ساری پیشن گوئیاں اسی میں پوری ہونی ہیں انشاءاللہ. ہاں جی اوکے. اچھا چیپٹر سنے, یاویل جو ہے وہ چیپٹر نمبر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کدھر گیا, 29, اور اس کی آیات 2 پڑھتے ہیں ہم. اس میں ہے کہ ایک سیکنڈ میں آیت کنفرم کر لوں, آیت کیا تھی, اوکے 28, تو ہم 27 اور 28 پڑھتے ہیں. تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں, اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں, اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں, اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں, اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو چیما صاحب, غلام ملازم تے اللہ تعالی نے کیسا فضل کیتا. باقی سارے تخت والے سے کوئی بکریاں چلاਉਂدا سی, کوئی بت بناਉਂدا سی, یہ دیکھو رانا صاحب کتنی خوبصورت گل ہے بائبل دی کہ
नबी वध जाने ने ते उम्मत थोड़ी रह जानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पता क्या, नबी देखा जाए तारीख में तो नबियों से फायदा ही हुआ है दुनिया को, किसी नबी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्यों चिढ़ते रहते हैं। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਗਰੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। की बात कर रहे हैं अली अकबर साहब, इनको रोकें। ये पहलू ठीक है, मगर देखे इंसान, हम अल्लाह ताला ने जो बनाई है ना दुनिया, तो हर चीज के अंदर उसका एक पॉजिटिव पहलू भी है और नेगेटिव भी रहा ही है। मिसाल के तौर पे खाना है, खाना हमें जिंदगी देता है, हमारी जिंदगी बढ़ाता है, हमारी भूख मिटाता है, मगर वही खाना अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। ये असूल हर चीज पे लागू होता है। आपकी बात दुरुस्त है कि एक अच्छे काम के साथ एक दूसरा पहलू भी था कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं, दोस्त ख़त्म हो रहे हैं, एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, मगर वो अल्लाह ताला के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो अब अगर ज़्यादा हो जाएंगे लोग तो सबका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक से ज़्यादा भी आ जाएंगे तो क्या उन्होंने पहले किसी दुनिया को ख़राब कर दिया था? किसी के जो अब आके ज़्यादा चीज़ ज़्यादा ख़राब कर देंगे? कुछ भी नहीं होएगा, ऐसे ही चलता, जैसे चल रही थी दुनिया वैसे ही चलेगी। बस एक चीज़ का मुझे फ़िक्र है, वो मैंने देखा है कि इन मुलहमीन की आपस में नहीं बनती। ये खुद तो कह रहे होते हैं मुझे अल्लाह मेरे से बात कर रहा है, मगर कोई दूसरा कहते नहीं ये तेरा ठीक नहीं है, तेरे ख्याल ने सिर्फ, तब बड़ा चिड़ चढ़ती है कि भाई यार ये हद है यार। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਵੇਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਭਾਓ। ਜ਼ਾਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਓ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? यार यही तो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा ना, इनके दरमियान मुबाइले हो रहे हैं। ये जो आपका एतराज है ना कि हमने एक को ही मानना है, ये भी गलत इस्तदलाल है। बिल्कुल। एक वक्त में नहीं, एक वक्त में अब बनी इसराइल की मिसाल ये तो आम अक्सर आपकी जुबानों पे होती है कि बनी इसराइल में हजरत मूसा के बिल्कुल साथ साथ हजरत हारून थे, दोनों पे उनका ईमान था। इसी तरह कई इबारात में तो आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो 19 अंबिया आए हैं, और कई एक ही दौर में भाई एक ही दौर में 4 नबी थे। मेरी बात पे अगर फोकस करेंगे ना, समझे, अगर सारे मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला एक है और बंदे अगर वो नीचे से फर्ज किया 10 भी अगर कह देता है तो वो 10 के 10 एक बंदे की बात बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं 10 में कमाने में। प्रॉब्लम सही कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम कहाँ पे आता है सही कि जब ये 10 कह रहे हैं कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, मगर एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं ये झूठा है, तब हमारे जैसा बंदा कंफ्यूज परेशान हो जाता है कि खुदा के बंदो सारे अल्लाह की तरफ से मिल के काम कर लो, मिल के एक दूसरे की बात पे एग्री करते हुए आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने एक इल्हाम किया और 400 नबी बायक वक्त 400 नबी राणा साहब सारियां ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ज़हनी कैफियत ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या कह रहे हैं? ज़हनी कैफियत है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ शातमियत हो गई, यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ हर चीज से क्या हो गया वो वैसे नहीं हर चीज से ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਣ ਡੱਕੋ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? दिल आजारी कर रहे हैं। ਕਹੋ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ज़हनी कैफियत ਹੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ना करो राणा साहब यार, ज्यादती है कि भाई ऐसा ना करो यार। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾ ਡੰਡਾ ਫਾਲੋ ਕੋ ਮਨੋ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। यार कितनी तौबा कितनी ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਦਾਊਦ। नहीं ये मदामत भाई अब देखें जिनके आप मशीर आला है उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। शातमियत डेविड भाई ऐसे ना बोलें प्लीज। और ये शातमियत आप लोगों के अकायद के मुताबिक कह रहा हूँ, मेरी नजर में तो शातमियत कुछ नहीं होती, कोई नहीं होती। जितना बड़ा गुनाह किया है
توبہ استغفار استغفار, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. جی جی محمد احمد جی قرآن دے وچ غیر المغضوب علیہم والضالین آیا ہے, یہ تو لیندے نے عیسائی اور یہودی مراد, ہاں جی حالانکہ اے اہل ایمان اہل کتاب لوگ سگے. ہاں جی وہ یار جنہاں نے انہاں کتاباں نو بھی نہیں منیا, جنہاں نے انہاں دے اللہ نو بھی نہیں منیا, انہاں نو کدی کچھ نہیں کیا قرآن دے وچ. نہیں وہ یہ زیادہ ظاہر صاحب وہ زیادہ ظاہر صاحب مغضوب نے یا ظالم نے یا یہ نے. ظاہر صاحب دالین دا مطلب یہودی نصارا نہیں ہے, دالین دا مطلب جیڑا من کے تے پھر اکھڑ گیا اس نہ پیرا تو. ہاں تے جڑا نہیں مندا وہ زیادہ بھڑا کہ جڑے چلو کتے منیا سی وہ ٹھیک سی. اور رانا صاحب بادشاہ والی گل کردے ہو, جیڑا کسے نو مندا پیا ہوندا ہے نا, ہاں ہاں انہوں کو نواں لالی پاپ دینا سوکھا ہوندا ہے. جیڑا کسے نو مندا ہی نہیں پیا, انہوں کی فرق پینا, تسی 2 نبی لیاؤ پاویں 100 نبی لیاؤ, یا ٹھیک ہے. اور بھگوان صاحب میرا آپ سے علی اکبر صاحب سے ایک سوال ہے, ذرا میری میں نے بڑا بات ضروری مان سوال لو, پوچھنا یہ ہے. انبیاء کی لڑائی ختم ہونے کا واحد ایک طریقہ ہے, واحد ایک طریقہ ہے انبیاء انہاں والی دا لڑائی علاج ختم کراؤ, کرنے انہاں کا. دا علاج کراؤ, بھیا انہاں دا علاج نہیں کراؤ. نہیں 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 ایسی بات کر رہے ہیں, نہیں نہ نہیں کریں نہیں نہ کریں. جہاز چیمہ صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں. رانا بھیا راجپوت کے صاحب وقت پلیز, ایک ہی اگر حل ہے ریاض چیمہ نبیوں صاحب کی جھوٹے لڑائی ہیں تو ختم سارے کرنے نبی کا. جھوٹے ہیں. حل سن لیں, حل سن لیں, نبیوں کی لڑائیاں ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے. بیک وقت دنیا میں بکثرت نبی ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ بہت زیادہ, کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی. انہاں جواب تے لوا 12 گھنٹے جا شفٹ کرنا, میں ویسا کیڑا لا بندہ. یار واٹر بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے ان کو کرنے دیں یار. واٹر بھائی کو ہاں جی نوکری ہاں جی واٹر بھائی کریں, واٹر بھائی کریں. ہاں جی جناب, محمد احمد صاحب اور علی اکبر صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو آپ ابھی نبیوں کی لڑائی بتا رہے تھے, اس کی ساروں سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. غیر المغضوب علیہم والضالین, ٹھیک ہے, اس میں کہہ دیتے ہیں یہ یہود و نصارہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہود و نصارہ کہنا نہیں آتا تھا, وہ کہہ دیتا غیر الیہود والنصارہ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ انہوں نے آپ ہی یہود و نصارہ بیچاروں کو بدنام کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی بدل دی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں جی, قابل غور بات ہاں ہے. جی, اللہ تعالیٰ یہ وہی بات صبح میرے پہ جو کلاس لگی تھی وہی بات واٹر بھائی نے کر دی. کبھی آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے, کہتے ہو صرف ہمارے اندر شامل ہو جاؤ, ہم بہت اچھے ہیں, ہم بہت صحیح ہیں, بالکل. ساری دنیا گندی. ایویں یہود و نصارہ نو بدنام کیتا ہوا ہے یار. ساری دنیا کی سہولتیں اس وقت جتنی بھی ہیں نا, الف سے لے کر یہ تک, وہ یہود و نصارہ نے کی ہیں, اور ساری دنیا کے ظلم جو ہیں وہ مسلمانوں نے کیے ہوئے ہیں کسی بھی رنگ میں. آیتیں پڑھی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ان میں, آپ لوگ سلامت رہنے والے, ساری خیریں آپ کے ساتھ ہیں. آج جو طاہر اشرفی دا منڈے دی نا تصویر لگی ہے ایک واٹس ایپ گروپ تے, انہیں گریجویٹ کیتا یو کے یونیورسٹی آف سکھ نا, تے نال لکھیا نا کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے منڈا اپنا یو کے لے گیا, سانو مدرسیاں چ آپ یونیورسٹیاں چ. یہ جو آیت ہے نا اس کی ایک مسلمان تفسیر کریں. تم جب جانو گے میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں, اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. سر صاحب ظاہر ہے کہ یہ تو بات تو ہو رہی ہے, سائنسی ہو رہی ہے نا, بائبل پڑھ رہے ہیں وہ پڑھے, میرے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے جو اس کے ماننے والے ہیں. یہوہ, بنی اسرائیل, خداوند, دس اینڈ دیٹ, اس کے ماننے والے کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں ہوں گے. مسلمان تفسیر کیا ہے کہ سر یہاں پہ آپ کا ذکر نہیں ہو رہا, یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ہمارا. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک انسان کو خدا بنا دیا تو اب آپ اس کے ماننے والے نہیں رہے. ہم نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے حضرت عیسیٰ, اس کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں, تو ہم ماننے والے اس کے, یہ ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. یہ آپ کا ذکر نہیں ہو رہا. کیسا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مزہ آیا. مسلمان قوم ہی پکی پکائی کھانے والی ہے, یہ کبھی پکا کے نہیں کھاتے, پکی پکائی پہ آ جائیں گے مہمان بن کے. یار قسم سے بائبل پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ کیوں ایسے وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں کاپی کی ہے قرآن نے, ورقہ بن نوفل نہ مانتا تو پوری بائبل کاپی ہوئی گئی, بہت ہو گیا ٹائم نال ہی. آزاد بھائی آپ اس ٹائم موجود تھے, ایویں آج بیٹھے پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. اور رانا صاحب ہوں راجیاں دا ذکر شروع ہونا, تسی پھر لے جانا تھلے, کیوں بندیاں نو تانگ کردے ہو یار؟ ویسے یہ آخری آیت سنو بھگوان بھائی, یہ کتنی سملیرٹی ہے, مسلمان بھی یہی مانتے ہیں اور کرسچن بھی یہی مانتے ہیں. آخری آیت میں لکھا ہوا ہے, اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا. خداوند کون ہے؟ جیزس ہی ہے نا بھگوان بھائی؟ جی جی ہاں,
और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सिय्योन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। सर जी दसो, सुभान अल्लाह नहीं है, कमाल नहीं है। अब मुसलमान भी कहते हैं कि हजरत ईसा आएंगे, वही सारा कुछ है, उनका नाम जिंदा है, उन्हीं का नाम लेना है और उन्होंने बचाना है। क्रिश्चियंस भी यही कह रहे हैं। और ये मुसलमान जितने भी हैं ना, सुन्नी मुसलमान, ये सारे के सारे सही हैं बेसिकली, क्योंकि इन्होंने अपना सारा दीन तो हजरत ईसा को दे दिया हुआ है। ऊपर बैठे बैठे उन्होंने जेन्युइन कुरान अल्लाह से सीखा है, जेन्युइन जुबान अल्लाह से सीखी है, जेन्युइन आके जो मुसलमान क़यामत तक नहीं ना कर सकेंगे ईसाइयों को मुसलमान, वो हजरत ईसा आगे करेंगे। ठीक है ना जी। तो यार पिछली आयत सुनो हजरत मसीह इस्लाम की सदाकत के लिए, सुनो हजरत मसीह इस्लाम की सदाकत के लिए सुनो, पिछली आयत में क्या कह रहा है। ये हम तो ही देखिए मानते अली हैं अकबर कि- साहब देखो इन्हों अच्छा नहीं, ये ਉਹ ਅਲੀ सदाकत की तो ਅਕਬਰ कर सकते हैं ਆਪਣਾ बात ਵੱਡਾ यार। ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। यार ये सूरज चांद ग्रहण अल्लाह ताला ने कैसा निशान दिखाया था हज़रत साहब के लिए, तो उसमें यही लिखा हुआ है, इससे बेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। सूरज चांद ग्रहण की तरफ इशारा है। वैसे तो एक आयत वाज़े सूरज चांद ग्रहण की भी है और वहाँ पे जिक्र है उनकी अपनी आमद का, वो भी अगर भाई कहेंगे तो मैं जिस तलाश करके जिस सुना हिसाब सकता नाल हूँ मन लगता है अली अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਆਨ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖੇ ਹੈ तो मैं ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੈਸਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਸ਼ੀਆ ਕਰ ਲੈ ਸੁन्नी ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਹੁਣ ਦੌਰ ਲਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ। टीएमएस भाई आ गए हैं, मैं म्यूट करने लगा हूं। इजाजत है बात करने की या ये मुतिद्दा मजल से दोस्त बन गए। मैं म्यूट ये करने मुतिद्दा लगा हूं। मजल टीएमएस से भाई आ मुल्ले गए हैं, दीन चल रही है, कोई इजाजत है बोलने की या नहीं? मुल्ले तो टीएमएस भाई आ गए हैं, बोलने की मैं इजाजत है या खामोश होने नहीं? लगा हूं। बोलो मैंने बोलो कहा टीएमएस भाई आ गए हैं, मैं म्यूट करने लगा हूं, इससे पहले मेरी पिटाई करें तो मैं बंद करने लगा। जजाकल्ला सर, आपने मोहम्मद अहमद भाई आप बहुत प्यारे अच्छे भाई हैं, फूल सितारे आपको लगने चाहिए, लेकिन आपने मौलवी साहब के साथ अच्छा नहीं किया। वो गुस्से में थे तो आपको थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए था। आप आगे से उनको ही हो गए शुरू, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते होते। बाद में यही कहने ऊपर उस वक्त के मौका ढूंढ रहा था कि मैं ये कहने के लिए ऊपर आऊँ। सम टाइम मौलवी साहब आपको पता है आपसे परेशान हूं, मौलवी वो वाहिद साहब बंदा है, मौलवी साहब वो वाहिद बंदा है जिन्होंने मुझे प्राइवेट में लिखा था कि मोहम्मद अहमद साहब की ज्यादा स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छे प्यारे अहमदी भाई हैं। अच्छा मेरी वो तो बात बाद सुनो, में मैं मुझे कह रहा पता हूं चला कि मोहम्मद अहमद परेशान ना भाई हो। मुलिद हैं। ओहो परेशान ना हो, मौलवी साहब और मेरा एक अपना अलग लेवल का प्यार है, हम तो इकट्ठे प्राइवेट में भी रहते हैं, जलसे में भी इकट्ठे बैठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा चलता रहता है। मैं उनको तकरीब कार कह नहीं रहा था, हंस रहे थे हम, कल खेल रहे थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब मेरे लिए बड़े प्यारे हो, उनके खदशात भी ठीक है और मैं उनको भी रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखता हूँ जी। आगे चलते जाएं। टीएमएस साहब आपने क्या जरूरी बात करनी है बोल दें। यार अली अकबर साहब वो मुझे जरा पहले ये समझाए, वाटर भाई क्या समझाना है। यार ये भगवान का मजहब क्या है यार? ये चारों पासे खेड़ रहा होता है बैठ के, जरा मुझे इसका मजहब बताओ ताकि मैं भी इसके वो दबोचू ना किसी दिन फसीए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ। भगवान का मजहब कोई नहीं है, दीन है, अल्लाह ने एक ही भेजा है, उस पर वो कायम है, मेरा ख्याल है ये। भगवान भाई सही तर्जमा नहीं हुई आपकी? असल में मेरा ख्याल है ये सवाल ही नहीं बनता कि तुम्हारा मजहब क्या है, ये अल्लाह ताला के सवाल हैं यार। हम लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है। मेरा ख्याल ये गैर नहीं भाई नहीं, ये सारा वेला बैठ के हमारी जमात पे तनकीद करता है। हाँ वाटर साहब दा वैसे ये सारी टाइम हमारी जमात पे तनकीद करता है और हजरत मसीह मौद के खिलाफ बकवास करता है। तो मैं अब इसको और अपना मजहब और फिरका कभी बताता नहीं है, कभी कुरानिस बन जाता है,
اور بولتا ہمیشہ یہ بریلویوں کے حق میں ہے او واٹر یہ صاحب ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ हाँ इंसेक्शन बना ये- वाटर ये- साहब ये बात बात पता है क्या सही है, ये बड़ा उम्दा वैसे आपने तकाजा बनाया है कि मुझे इसका मजहब या फिरका बताइए, मैं इन्हों ही गाला थप्पा है यार, वैसे निकाल लें आप, कोई मसला नहीं। जी जी मैंने ये- बिल्कुल ये बनाया बड़ा ताकि आसान हो आपको जाता है वहाँ ना। जाके बचे मुझे वहाँ वैसे- जाके ये बड़ा- बचेगा, हमें अच्छा ये ये बताएं, ये बताएं वाटर साहब कि आपका कौन सा ऐसा फिरका इस्लाम का या कौन सा दुनिया का ऐसा मजहब है जिसके खिलाफ आपके पास बड़ा मजबूत टीका है, मैं वो बन जाता हूँ। आहा, आप पहले मुझे बताएं ना, क्योंकि आप बैठे हजरत मसीह मौद के खिलाफ बकवास करते हैं रोज वहाँ पे यार, सैनी की ब्रॉड पे, और यहाँ पे यार आके बकवास, मिट्टी पहली मुझे बात मुरीद बन के मजे ले रहे हो। पहली बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, उधर ऐसा नहीं होता मेरे वाले, अगर कर 2 नंबर होना है तो पूरे 2 नंबर हो, अगर 1 नंबर होना है फिर 1 यार नंबर मैं होके तो रहो। अल ऐलान 5000 बार कह चुका हूँ कि मैं काफिर हूँ, काफिर हूँ, काफिर हूँ, ठीक तो बेशुमार काफिर हो बात तो है। फिर को काफिरों के साथ कोई दोस्ती यारी रखे, तू इधर फिरना है, मजे लेंदा फिरना है यार आपके साथ। मेरी दोस्ती यारी की बात ही अच्छा नहीं, मैं भगवान भाई, मजीद बंदे भगवान भाई काफिर मैंने करने- बिजी हो जाना है, मैंने बिजी हो जाना, अली मैंने भाई ने सवाल बिजी हो पूछना जाना। था। अली भाई की गाल सुनो। हाँ। मोहम्मद नहीं, मोहम्मद अमन भाई आप पहले बोल रहे हैं, आप तो इस चीज में बड़ा नहीं, मजा नहीं। आ रहा था, आप बोल रहे पहले। नहीं नहीं मैंने मैंने कोई भी यार बात ये नहीं करनी थी, कमालाते मैं तो ये इस्लाम कह के रहा हूँ भाई अली तो भाई नहीं को। है, इनकी आवाज बड़ी मिलती है उससे। नहीं 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 भाई, कमालाते इस्लाम मैं नहीं छोड़ी, जानता वो भी नहीं। फतेह इस्लाम। नहीं, अली भाई वो आप करो होते बात, मेरी कोई इतनी जरूरी नहीं है, पास मैं ही फिर है, कर लूंगा। पर नहीं, मैं उन्हें भी नहीं जानता पर्सनली। अब साहब ये वो 5 यूरो वाली क्या बात हो रही थी? आप 5 यूरो भी ना रखे, आप चंदा ही ना देने चाहे तो कोई टेंशन नहीं है, 5 यूरो से भी नीचे जा रही थी बात, तो वो क्या चाह नहीं रही? वो जरूरी हो गया है। उस ये वो वाली बात अली भाई बताते हैं, उससे पहले मैं भगवान साहब से एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। भगवान भाई, इंसान जब कोई बात करता है ना, तो वो माशरे में कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है ना, वो गलत भी होता है कई दफ़ा ठीक भी हो जाता है ना। तो मैंने अभी आपकी तरफ से एक तर्जुमानी की थी कुछ ऑब्जर्वेशन करके, तो आपने वो बताना है कि वो ठीक है कि गलत है। आपने तो खुद से कह दिया नए होके कि मैं काफर हूँ, मगर मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि भगवान साहब का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, हाँ दीन अल्लाह ताला ने सिर्फ भेजा ही एक है दुनिया पे, जब से दुनिया बनी है उसके अलावा कुछ है नहीं है, तो दीन के पे को फॉलो करते हैं, मज़हब उनका कोई नहीं है। तो क्या ये तर्जुमानी ठीक रहेगी या गलत है? जैसे देखें दीन का तर्जुमा बनता है फैसला। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि लकुम दीनकुम वाली दीन, हर एक का अपना फैसला है, ठीक है, और मेरा अपना फैसला है, तो बिल्कुल उस तरह तो मैं दीन पे आऊँ। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट में आप कह रहे हैं कि इस कायनात का एक क्रिएटर है और उसको कह रहे हैं कि वो खालिक कायनात का नाम अल्लाह है, उसने हम सब को बनाया है, ये कायनात बनाई, तो मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके ओके ओके, मैं इस फिर तो कायनात ठीक का है, कोई तुसी क्रिएटर काफर नहीं हो। मानता। मैं इस कायनात को मैं क्रिएटेड ही नहीं मानता। हम ओके, इतने ओके, काबिल होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो ये नहीं दावा कर सके कि हम किसी मादा को बना सकते हैं, हाँ, और बिल्कुल जबकि ठीक है। कोई मादा बनाया ही नहीं जा सकता, कोई मादा खत्म ही नहीं किया जा सकता, और मादे के बगैर कोई गैर मादी चीज वजूद ही नहीं रख सकती, तो ये गैर मादी खुदा का वजूद रखना इम्पॉसिबल सी बात। तो मेरा वो सही हो कॉन्सेप्ट। गया। नहीं फिर आप वाली बात ही ठीक है, काफर ही ठीक है आप। हाँ जी हाँ जी, पक्का चक्का काफर। भगवान भाई, एक आपकी ये बात सुन के एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? 2-3 करें। नहीं वो कोई यार मेरे साथ लड़ाई के लिए नहीं किया करे, एक इल्म आया नहीं है तो बंदा कह देता नहीं तेरा यार जवाब देना। मैंने कब लड़ाई की ठीक है। आपसे? मैंने कहा एक की बजाय सुन- 2-3 करेंगे लड़ाई है। अच्छा सुने भगवान भाई, आपने अभी कहा है, आपने अभी कहा है कि कोई मादा बन नहीं सकता, ना वो हो सकता है, और मादे के बगैर कोई चीज सरवाइव नहीं कर सकती। तो मेरा ना- भाई जिस ना- वक्त ना- बंदा ना। जिंदा, एक मिनट सुन मैंने ले। ये नहीं कहा ना, आप गलत क्या इस्तेदलाल कहा? कायम करेंगे। मैंने ये क्या कहा कहा? है कि कोई गैर मादी चीज बिना मादा जी। के वजूद ही नहीं रख सकती। ठीक है, इसकी मिसाल अगर हाँ आप इस तरह देते हैं तो मैं वो दे अगर इस देता तरह भी ले सकते हैं। हूं। हाँ जी तो सवाल मेरा ये है हाँ कि जी। एक चंगा भला बंदा फिर रहा होता है, एकदम गिर के मर जाता है, उसमें से क्या चीज निकलती है जो उसमें से जो उसको चलने फिरने से माजूर कर देती है, और हम कहते हैं कि ये डेड बॉडी है, वो क्या होता है? कोई इल्म नहीं इस बात पे, कोई इल्म नहीं। चलें फिर,
हाँ नहीं नहीं हवा मेरा निकल ये जाती पॉइंट था हवा ना निकल कि जाती होती हवा निकल जाती पता नहीं क्या निकल जाता है, कोई कहते हैं रूह निकल जाती, कोई कहते हैं कुछ निकल जाता, कोई इल्म नहीं है। रूह दा मादा देखो हवा ही है और तो कुछ नहीं है। हाँ वो कर लो, लेकिन आई डोंट नो टू बी साची मुझे नहीं पता। बरेलवी हैगा एवें मुझे मारदा है मजहब में भी इसका कोई इन्हू जवाब पता नहीं नहीं मिला, है इत्थे जिंदा और कोई मुझे चक्कर नहीं पता इन्हू। मजहब से बाहर भी इसका साइंस में भी नहीं जवाब मिला, इसका कोई पता नहीं अभी तक। अभी तक इंसान इस चीज पे अबूर नहीं हासिल कर सका, मैं भी कर ले। लेकिन ये कहना कि जो मैंने पहले बात की थी कि कोई भी गैर मादी चीज बिना मादा के वजूद नहीं रखती, मतलब उसकी बुनियाद में मादा होता है। मिसाल के तौर पे आपकी अकल है, आपकी अकल गैर मादी है, लेकिन आपकी अकल वजूद नहीं रख सकती जब तक आपके पास दिमाग नहीं है फिजिकल। अगर वो नहीं है तो नहीं यार कोई बात नहीं बन रही, तेरी गल सानू नहीं समझ आ रही है। मैं तो पूरियां इस मार तरह रहा ना आप खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मुझे मैं ये कह रहा था बात साहब। झूठ मारी जा रही है। कौन बरेलवी सा हैगा देखा बाटा साहब, मैं अल्लाह के फजलो करम से क्या बनूं बताएं, अल्लाह के फजलो करम से देवबंदी हूं। अब ठीक बरेलवी है, है बरेलवी कब्र पूजा। अब बरेलवी क्योंकि मैंने बरेलवी। तुझे देखा है कि तेरे हाँ। नफरत का निशाना सिर्फ जमात अहमदिया होती है। हाँ मैं नफरत का हूँ, निशाना इसकी ना हमेशा जमात अहमदिया होती है, बकवास करता है। मैं हूँ वाटर साहब, मैं हूँ अल्लाह के फजलो करम से पक्का बरेलवी। हजरत क्या नाम है हजरत हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब का जनाब मैं पैरोकार हूँ, मुरीद हूँ। ठीक है वाटर साहब, खुश हैं? दूजे लफ्ज तो मदीने का कुत्ता है। मदीने का कुत्ता हूँ, रसूल का गुलाम हूँ, गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। ठीक है, दाता जवेरी साहब का जो है वो चेला हूँ, और शेख अब्दुल कादर जलानी साहब का चमचा हूँ। सवाल किया था मेरे से, मुझे भी जवाब देने दें। अली भाई क्या पूछ रहे थे आप बताइए जरा। वो 5 रुपए वाली रसीद को कुछ पूछ रहे थे, वहाँ मौजूद थे, मैं तो सुनी भी नहीं थी उसने। मुझे सुबह थोड़ी सी मिली थी एक ऐसे खबर सी, तो मैंने कहा था अली भाई से पूछूंगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा था बताएं क्या, तो 5 रुपए की रसीद मैंने सुनी है, कह रहे हैं कि 5 रुपए की रसीद दिखाओ तो फिर हम मानेंगे कि तुम्हें जमात से नहीं निकाला। ऐसी कोई वहाँ पे उलमा बैठ के बातें कर रहे थे, ऐसे कोई सिलसिला था, मुझे तो नहीं पता। कह रहे हैं खाते जो है तब तक असली है। मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे लोग बैठे थे, अगर आप ही कहते आप उससे कहते सिर्फ छोटी सी बात कि वो खात ज़रा खोलें, सामने लगाएं, जहाँ पे पहले तो लफ्ज़ अखराज का लफ्ज़ दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगली बात तो 5 रुपये में तो बाद में जाएंगे। तो उनसे कहना था कि वो खात ज़रा पढ़ के सुना दें कि वहाँ पे अखराज लिखा हुआ कहाँ पे जो आप ले के फिर रहे हैं। तो ये आपने सवाल किया था उनसे। अली भाई तो नहीं थे कल, परसों के अली भाई की बात हुई थी, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अली भाई रात को बैठे थे, मेरा ख्याल है एक वीडियो आई थी अच्छा रात में थे, मैंने नहीं फिर परसों तो देखा था मैंने। ऐसे तो अली भाई अखराज की पॉलिसी खत्म कर दे खलीफा खान। लेकिन तो सारे उलमा बैठे थे राती, तो गल कर रहे थे कि अली अकबर का जो इखराज हो गया जमात से और उसको गंद था अंदर से निकाल दिया है। अब आमिर नज़ीर और अली अकबर दोनों हमारे लिए सेम हैं, कोई फर्क तो नहीं। अंदर से किसी बंदे ने कहा था गालिबन या शायद ये उन्होंने खुद ही से निकाला था कि वो ये कौन कह रहे थे? ये कल सारे उलमा बैठे थे ना, इमरान कालों कौन कह रहे थे? इमरान कालों कह रहे थे, सैफी कह रहे, सारे बैठे थे, नहीं कह रहे थे यार क्या कहते हैं अली भाई। और बाकी मुझे सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए, फिर मैंने अपने काम में एक बिजी होना है। वो भगवान भाई किसी सवाल हुआ और भगवान भाई को उसका आंसर नहीं पता था, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बड़ी अहम मुफीद इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ गिनती के 3 मिनट लगेंगे। वो इल्म में इजाफे के लिए मैं भगवान भाई को सुनाना चाह रहा हूँ। भगवान भाई इधर ही हो और इजाज़त है? जी जी सुने फिर सुने। आप इंतहाई बोरिंग चीजें सुनाते हैं मोहम्मद अहमद साहब। अली अकबर का लेटर पढ़ के सुना। आपने मेरी पूरी लाइफ बोरिंग सुनाना, आपने मेरी पूरी लाइफ बोरिंग कर दी है मोहम्मद अहमद भाई। अच्छा नहीं सुननी, चलो ठीक है आप करो बात करो, फिर मैं नहीं पढ़ के सुना दे मजाक पढ़ नहीं वो ऑडियो ही है। हाँ सुना दे। चलो सुनो फिर।
आवाज नहीं आ रही। मैं तो पंज तन का आवाज नहीं आ रही किसी को? गुलाम। आवाज नहीं आ रही नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, फिर अभी आएगी। अब सुनना बताइए। तो यूनुस भाई, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। रूह का एक अपना वजन होता है 15 से 20 ग्राम, 12 ग्राम भी होती है। रूह का एक वजन है, ये वजन है बस, इससे ज्यादा वजन नहीं है। और जान का कितना वजन है मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। क्योंकि ये जितनी भी आज आप मखलूक देख रहे हैं ना, टनों वजन होता है, टनों। और 2, 4 टन, 5 टन, 6 टन, ये अल्लाह बेहतर जानता है जान का कितना वजन होता है। जान का मसला अलग है, रूह का मसला अलग है। और बाल में और उनमें तो कुछ भी नहीं होते, कोई वजन नहीं होता। अरे यार, ये बहुत पेचीदी बात है। अगर इंसान समझ जाता तो आज औरतों को अपनी जगह पे रखता, लेकिन इंसान समझ नहीं पाया, इसलिए औरतों को वहां खड़ा कर दिया जहां औरतों को नहीं होना चाहिए। अभी आज देख लो आमिर फैसल के ग्रुप में क्या हो। अच्छा, अब एक और इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम आएगी, वो भी सिर्फ 1 मिनट की है, फिर बाद में आप लोग अपनी बात जारी रखना। देखो ग्रुप के लोगों, बहुत गौर से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखो, अगर औरत के अंदर रूह होती तो आज ये हालात पूरी दुनिया के नहीं हुए होते। औरत के अंदर रूह नहीं है, लेकिन आदम के अंदर रूह रखी गई है। तो ये काम इंसानों ने किया है, तो औरत को इतना बढ़ावा दिया है। उस इंसान ने अपने रूह का गलत इस्तेमाल किया है, तो सजा तो भुगतेगा ही ना वो। और साथ में वो भी सजा भुगतेगी जो उसके कहने पे चल रही है। सब होना है, क्योंकि साफ बयान है, इब्लीस से बात कही गई है, जो तेरे कहने पे चला मैं सबको जहन्नम में झोंक दूंगा। किसी को उम्मीद नहीं दिलाई गई है, सबको जो इब्लीस के कहने पे चला। आज वही हो रहा है। आज आप आमिर फैसल के ग्रुप में देख लो क्या हो रहा है। ये क्या है? ये मैडम शगुफ्ता जो एक औरत ही तो है, क्या है ये? इसके अंदर रूह नहीं है, उल्टा सीधा बोला करती है। तो इसको बुलवाने वाला कौन है? आदम, इंसान। मैं तो कहता ही हूं ये, तो ये जो बोया उसको तुमको खुद काटना पड़ेगा। औरत की सही जगह घर के अंदर थी, लेकिन बाहर लाके इंसान ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो मारी है तो झेलो। ले जी, ये भगवान साहब एक नई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता नहीं थी रूह के मुतालिक, जो मैंने पहुंचा दी है। इसको एंजॉय करें। जानते बंदा कहता हल्की फुल्की होनी चाहिए मशरूक ना, ਉਹਨੂੰ जान के अंदर ना बंदा जान के हल्की फुल्की लगती है। अच्छा वो अली अच्छा भाई आजाद भाई अब ना तो जी अली भाई आ गए जरा यार। ने रूह ਦਾ अहमद भाई एक मिनट देना, अली भाई निकाल सुन लेना तो यार। एक सरजी अली भाई, नहीं आप साहब, मुझे ये चंदे रसीद वाली चीज तो नहीं पता, ये मेरे लिए नई बात है, ये नहीं थी मेरे सामने हुई। उस दिन वो ब्राड थी, तो उस पे ताहर साहब भी थे, वो कुछ पूछ रहे थे मेरे से कि मुझे उनकी तो ब्राड बहुत बुरी लगी है, तो कैसे ना। तो मेरे जहन में बात आ नहीं थी रही। फिर मुझे याद आया कि एक दिन उनकी वो ब्राड पे आए थे जफरुल्लाह शाह साहब, और फिर उसके बाद उस्मान रिजवीना। तो ये आजाद भाई, उस जो भी बातचीत चल रही थी, जो भी डिबेट हो रही थी, तो मीडिएशन आजाद भाई की तरफ से हो रही थी। तो जब ये सीसीडी भाई की ब्राड पे आए, तो इनसे मैंने पूछा कि उधर अवाम बड़ी बैठी हुई थी, तो हालात नॉर्मल ही रहे। तो इन्होंने ही बताया था कि बड़ी जालिम दलोच हुई है दोनों तरफ से, और कोई भी नहीं बचा। ये इनके अल्फाज थे, मुझे तो पता ही नहीं था। जी जी। तो फिर उन्हें ये थोड़ा सा याद दिलाया कि मुझे नहीं पता, मैं तो जैसे ही वो रिजवी की बारी आई थी मैं चला गया था, मुझे अंदाजा हो रहा था कि हालात इस तरफ जा रहे हैं। ये आजाद भाई के अल्फाज थे, मेरे तो अल्फाज ही नहीं थे, पहली चीज। और दूसरी ये चीज कि वो लेटर की बात हो रही थी कि लेटर ऐसे ऐसे आया ना, तो वो ही मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल लेटर सच्चा भी है, तो पहली चीज कि जिस तरह पता चला उस तरह पता नहीं चलना चाहिए था जी। सोशल मीडिया पे ऐसे लेटर फिर रहे हों या कुछ ऐसे, और वो भी
इस बात पे तो बदवान भी उसी ब्राड पे था, इसने ही जाके फिर दोबारा बताया। और मैं नीचे बैठा सुन रहा था, मैंने भी उनसे पूछा ये लेटर किसने दिया ना, तो उन्होंने बड़े वो तंज़ी अंदाज में बोला कि ये भाई जमात वालों ने दिया हमें। जी तो वो चीज़ थोड़ी मुनासिब तो नहीं है ना। तो इतनी सी बात हुई थी, उसके बाद रसीद वाली बात ये है कि रसीद वाली बात रसीद यही वाली है बात कि क्या हुई है? रसीद वाली बात इस तरह से कि रात को वही उलमा बैठे थे जिन्होंने ये लेटर तैयार किया था, और ये सारी जो उस वक्त गेम चला रहे हैं जिसके अंदर मतलब कि वो इमरान कालों साहब थे और सैफ़ी साहब थे और गजनी साहब और अहमद साहब ब्लैक आईडी वाले, हामिद भट्टी साहब, ब्यूटीफुल साहब, तो ये सारे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे गालिबन ये बात हुई थी कि अली अकबर ये कह रहा है कि ये जो लेटर है जेली है। तो उन्होंने फिर बड़े वाशगाफ अल्फाज में बात वजाहत की कि हम यहाँ पे कन्फर्म बता रहे हैं कि अली अकबर का इखराज हो चुका है जमात से। वहाँ पे गैर अमरीकी साहब बैठे थे, अहमद अली साहब जो कल हमारे पास भी आए थे सिफारिश करें, वो वहाँ बैठे थे, उनको बता रहे थे कि उसका इखराज हो गया। हमारे लिए इस वक्त अली अकबर और आमिर नज़ीर दोनों सेम ही हैं, जो हैसियत आमिर नज़ीर की है वही माशाल्लाह। तो दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर वो ये कहता है कि ये खात जेली है तो उसको चाहिए कि सुबह जाए अपने सेक्रेटरी माल साहब के पास जा कर के 5 रुपए की भले सदके की रसीदी कटा दे, वो ला के हमें दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि ये लेटर जेली है। वो कहते हैं कि हमें ला के दिखाए, 5 रुपए की एक रसीद हो, सदका हो या कोई ह्यूमनिटी फर्स्ट में दे दे, किसी चीज़ में भी दे के, ताकि हमें पता हो कि हाँ इससे चंदा लिया है। जब रसीद सामने ला के हमें सबूत दे देगा तो वहाँ पे एक वो बैठे हुए थे लूला लंगड़ा एक इंसान है, उठवाल में उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। नहीं हाफिज साहब वो ऐसे ना बोलें। जी जी हाफिज साहब, ये ज़रा म्यूट लगा लो, मैं राना साहब को जहाँ से शोर आ रहा है राना साहब की तरफ से। तो वो वहाँ बैठा हुआ था, तो उसने कहा था कि हाँ जी ये जनाब जमात। फिर अंदर एक ब्यूटीफुल साहब थे, तो उन्होंने फिर जर्मन में बात वजाहत भी की थी कि आइन फाख नहीं होता किसी को जमात से निकालना। उन्होंने वजाहत की थी कि आइन फाख का मतलब होता है कि इतना ईजी नहीं निकाला जाता किसी को जमात से, किसी की बहुत बड़ी गलती हो तो इसलिए उस बंदे को निकाला जाता है। अली अकबर की कोई बहुत बड़ी गलती है तो उसको निकाला गया है। तो सवाल वहाँ पे 2 थे। एक ये सवाल जो थे, पहला ये था, मैंने कहा शायद वहाँ पे कोई मुकल्लद गया हो, कोई हमारे ऐसा कोई बंदा सादा जिसने जाके बात उनसे पूछी हो कि भाई खात के ऊपर खराज दिखाओ, उसे लिखा हुआ क्या। पहला सवाल तो ये है ना कि आप लोग जहाँ बैठ के कह रहे हो कि खराज हो गया है, वो खात के ऊपर खराज का लफ्ज़ देखो, वहाँ पे तो खराज वाली कोई चीज़ को नहीं दिखी हुई। और दूसरा ये था कि जो उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि दूसरा ये कहता कि हमें रसीद ला के दिखाओ। भाई ये इनकी हैसियत क्या है कि उनको रसीद ला के दिखाए, इनकी औकात क्या है कि इनको ये बताया जाए। तो इसलिए वो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, कहते हैं कि हमें रसीद ला के दिखाओ तो हम मानेंगे कि इसकी खातिर जो है ये जेली है। ये बात हो रही थी सर रात को, और काफ़ी देर तक वही लगे रहे इसके ऊपर। तो वही मैं इतने गल करना चाहना, एक तो गल ये है कि इस तरह लैटर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 95% ਪਤਾ ਲੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 95% ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਰ ਜਮਾਤ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਚੋਂ ਨਾ ਮਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। राणा साहब, इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि वो जो नहीं इन्होंने पिछले को 2-3 महीने से एक माशाल्लाह लगा हुआ ग्रुप, जो मर्जी समझ लें, जो जिस मर्जी को जो चाहे इंक्लूड करे उस ग्रुप में, कि जमात की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन सारी जमातों को पहुंच चुकी हैं। सर जी रात को मेरी सदर साहब से बात हुई है, किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, अभी तक नहीं आई। एक बात। अहमद भाई नहीं आई, आप तो उस पे मुट्ठी रखिए ना, आप तो ना बताएं बेचारे क्यों सदर साहब आपने तो मरवाना आपने। मैंने नहीं वो सदर साहब वो नहीं ये बात नहीं है। सदर साहब को क्यों मरवाना है? यहाँ पे बैठ के हमें ये बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस आई हैं। और रात को मैं सनी साहब की बरात सुन रहा था, उस पे भी सनी साहब बता रहे थे कि उनके पास उनको भी किसी ने भेजी हुई है, उनसे खाली खुला नहीं गया, नहीं तो वो तो मलफूजात का उस मलफूजात का दर्स शुरू करना है उन्होंने। यार हमारे मेरे 5-6 दिन गुजर जाएंगे यार, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस में। पीएम साहब एक सेकंड, जो हमारी ब्रॉड के होस्ट हैं माशाल्लाह सीसीडी साहब, इन्होंने यहाँ पूरी पढ़ के सुना दी है बगैर तस्दीक के। तो इन्होंने यहाँ ये आधा घंटा लगा के पढ़ के सुनाई है लोगों को, इन्होंने यहाँ पे
मैं प्रेसिडेंट तक की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आज से 4 महीने पहले की बात ये बता रहे हमें। मैं लोकल जमातों की बात कर रहा हूँ, लोकल जमातों के सदरान तक ये बात नहीं पहुंची। एक बात। दूसरी, हमें रोका गया है कि फलां बंदे से बात नहीं करनी, फलां बंदे से बात नहीं करनी। रात को वही बंदा बैठा हुआ उधर, उन्हीं का सुरगना उधर बैठा हुआ उनसे बात कर रहा था। वजह जी, उसको ज्यादा कुरानी आयात आती हैं, या वो ज्यादा अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़ सकता है और हम नहीं पढ़ सकते। या तो वो दूसरों को कहो जो खुद करो। कुरान कहता है कि इस तरह की बात दूसरों को ना कहो जो तुम खुद नहीं करते। ये हमें बिठा के 100 बंदों में ये बताएं कि फलां ब्राड पे नहीं जाना, फलां बंदे से बात नहीं करनी, और तीसरे दिन इनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और ये जाके वहां पे बात करते हैं। ये इन्होंने चंगी बदमाशी शुरू की हुई है। अहमद भाई इतने जज्बाती ना हो, जो चेंजेस है वो स्लो प्रोसेस ही होता है। एक दिन चेंजेस स्लो प्रोसेस होता है ना। चेंजेस सर जी अली भाई, चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम बॉटम। जो टॉप पे बैठे हुए अपने आप को सुरगने कहते हैं, जो ये टिकटॉक पे 100 बंदा बैठा हुआ है, उसको एक बंदा कह रहा है कि तुम मुझे सवाल लिख के भेजो, मैं तुम्हें हजूर अनवर से जवाब लेके दूंगा। ये कौन कहता है? किसमें इतनी हिम्मत के ये बात के ऑन द ब्रॉड? आप राजा मनान की बात ना करें। राना साहब ने पहले भी गुस्सा किया था। वो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। समझ सारे रहे। अली अकबर, मैं जी गल सही है की है, जो तू कह रहे हो गलत है। जो सही होगा मैं तेज करेंगे। राजा मनान का जिक्र ना किया जाए, उसको हर जगह पे जा सकता है। आपने सरगना बोला है, राना साहब को गुस्सा लगेगा। ये उनके अजीज हैं और ये इनको उन्होंने कहा है कि भाई मेरे खिलाफ बात नहीं होने देनी, तो इसलिए आप गल सुन मेरी। जिदन का इत्थे इस ब्राड से आके उन्हें क्या सारे लाओ तो मैं गल करनी है, ते मैं बोलन लगा जो मैं पहले मेरी गल सुनो, कहते नहीं सुननी, मैनू भी लाता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, रिश्ते से भी तो वैसे भी। मतलब कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप है, उनसे मैं ये दसना चाहना है, मैं ये अली अकबर दसना चाहना जी गलत गल है उन्होंने गलत कहना सीखो। कोई रिश्तेदारी नहीं हैगी, कोई तलक नहीं है। जेड़ा गलत है ਉਹਨੂੰ गलत कहना सीखो। तो अगर गलत गल कर रहा मैं तेन रोकया, वो तो ये नहीं है कि मेरा भाई तो किसी होर दे खिलाफ भी करदा तो मैं तेन रोकना सी। चलें जी आगे चलते हैं। जी अली भाई आप क्या कह रहे थे? राना साहब की बात हो गई, अब आप अपना मौक़िफ़ रखें अली भाई जी। उसमें वो भी उन्हें बताया था कि 24 अप्रैल वाला भी लेटर है मेरे पास ना, मैंने खुद देखा हुआ है, तो वो भी लेटर मौजूद है। फिर अगर 15 अप्रैल वाला है ना, तो फिर 15 मार्च वाला 15 मार्च वाला मार्च हाँ जी 15 मार्च और 24 मार्च वाला ना जी। तो फिर दोनों लेटर ही हैं, फिर ऐसे ही है। और पर जो वो उस दिन जिस तरह ये लेटर सोशल मीडिया पे आया था ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दूसरे जो हैं वो वैसे ही अली अकबर के पीछे बैठे हुए हैं, तो एड्रेस ऐसे इशू हो जाना सोशल मीडिया पे इंतहाई नाइंसाफी की बात है आप साथ। और ये मैं अपने लिए भी सोचता हूँ कि मेरा भी ऐसे एड्रेस पब्लिक हो जाए तो नहीं होना चाहिए। कोई ना। अब मुकर्रम मोहतरम जनाब इमरान कानून साहब रात बैठ के मेरी बातें कर रहे थे, तो उन तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो उनको अच्छा खासा पता है कि अगर मैं उनकी यहाँ पे बातें कुछ शुरू कर दूँ निकालनी तो उनके पीछे पल्ले क्या रह जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल उनको चाहिए कि ऐसी बातें ना करें। मैं फिर वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक लोग मुझे मना कर रहे हैं कि वहाँ तक नहीं जाना। नहीं अली अकबर साहब आसान काम है, ऑनलाइन जाओ सर्वा क्राइम के उत्ते रूफ मौत का उन्होंने वीडियो ते खत ला के अनसाई के दे दो। हफ्ते बाद उन्हें दस देना कित्थों आया कित्थे गया। जो सारे अंदर दे के अगले पुछ लेना तो फिर सारे दस देना कित्थों आया किवें निकलिया किवें गया। सर्वा क्राइम का कम 5 साल कैद है। हाँ जी सर्वा क्राइम का काम 5 साल कैद है, तो नाल तुसी भी सारे फड़े जाओगे, वो सारों को भी फिर पकड़ेंगे। अरे जान जेले जेले विच शामिल ने जान अंदर, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਆਂਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਡੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਜਾਏ? ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ? ਚੁਲਡਿਸ਼ ਸ਼ੁਲਡਿਸ਼ ਸ਼ੁਲਡਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਚੁਲਡਿਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਐਬੀ ਠੂਆ, ਆਪ ਹੀ ਛੂਆ। ਆਬੀ ਠੂਆ ਆ ਠੂਆ, ਉਹ ਵੀ मैं याद कर लिया। लो जी, मजेदार वाटर वाकया भाई, सुनो कि एक ब्रॉड पे बातें हो रही थी कि अहमदियों का खलीफा जो है ना, वो सरवा सिस्टर बता रही थी एक ब्रॉड पे कि वो जनाब औरतों में घुस जाता है और जनाब अली ये होता है, तीसरे दिन वो औरतों में घुस जाता है जलसे की। ते डेविड साहब भी नाल बैठे सन, इन्हों ने भी कोई मौका नहीं जान देना हुंदा नंबर बनाने का। कहते ने ऐसे ਲਈ तो मैं उस दिन अपनी बीवी ਨੂੰ कदी जलसे ते नहीं जान दिता। आप ड्राइवर ਤੁਸੀਂ साहब की ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ जनाब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मना ਕੀਤਾ। आप ड्राइवर साहब की नकल ना उतारें, ये अच्छी बात नहीं है। वाटर भाई आप सबके नकलें उतारते हैं, कभी भगवान की उतारते हैं, कभी किसी को उतारते हैं, ऐसे ना करें, आपके लिए ये गैर मुनासिब ਨਹੀਂ रहेगा। ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ 10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 10 ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੇਵਿਡ, ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ डेविड ਹੁੰਦੇ झूठ ਨੇ। मारदा है, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल झूठ मारदा है। देखें जो इस बुलार के ऊपर बैठे हुए हैं आपस में ना टकराएं। वाटर भाई आप बुलार के ऊपर बैठे बंदों से टकरा जाते हैं, ऐसे ना किया करें वाटर भाई। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ मैं ਉੱਡਣਾ तो ਦਿਓ। इसलिए टकराना कि ब्रॉड में थोड़ी सी गर्म जोशी पैदा होए, वरना तो ये एक मुर्दा ब्रॉड हो जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सोशल मीडिया के हमाम में सब नंगे हैं। जी भगवान भाई आप जवाब देंगे, आप नंगे हैं भगवान? मेरा नंग पुना ते सारियां दे सामने ही। भाई वो आला हजरत के डॉगी हैं, वो कपड़े पहने या ना पहने। ये वाटर भाई, ये सच्ची आप साहब सच्ची बात है। मेरे से तो पूछे हाँ भाई तुम अहमदी हो तो मुझे तो ये वो ऐसे रसीदें दो, मैं तो ना दूं, सीधी बात है। मैं अहमदी हूँ तो अहमदी हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, पर रसीदें ऐसे मैं तो ना दूं। जितना मर्जी दूसरा मांगे, जो मर्जी बोले। मैं सर कौन सा दे रहा हूँ, मैं तो उनकी ना अक्ल के ऊपर लोगों को बता रहा हूँ ये मैं नीचे हाफिज साहब सुन रहा था ना कि 5 यूरो से बात हुई, स्टार्ट हुई, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर ऐसे होती गई ना। मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मेरा भी यही हाल है, लेकिन कभी कभी फाइटर की ब्रॉड नजर आती है। वहां पे नासिर भट्ट बैठा, नासिर भट्ट सारी दुनिया तो नाराज ही रहता है, कभी भी उन्होंने मैं खुश नहीं वेखिया कि कभी खुश होके बैठिया होए। वो सारा वेला ना बस गलियां हो जान सुनिया दे विच मिर्जा यार फिर ਜਿਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। भगवान साहब वगैरह ढूंढते हैं कि वरियाम की बरार जैसा माहौल मिले, सारे वो जैसे माहौल से बना नहीं देंगे ना। साढ़े कोल भी एक नासिर साहब है नहीं, मोहम्मद अहमद साहब, वो भी नासिर साहब ही समझो, लेकिन नहीं 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 ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नासिर ਨਾਸਰ साहब ਸਾਹਿਬ दा ਤੇ ਬੋਲਣ ਹੀ मुकाबला, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। हाँ नासिर साहब दा मुकाबला कोई है ही नहीं, उक्का सोचियो भी ना। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਏ ਆਪਸ ਚ। केड़े केड़े ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਹਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। दो अल्लाह नहीं, परसों अल्लाह दे रब आपस ही लड़ पे। एक रब्बुल आलमीन ते एक ਇੱਕ ਰੱਬ एक अल्लाह मुबारक। यार।
मैं अगले दिहाड़े दाऊ साहब काम लग गया तो मेरे ज़हन च गल आ गई मलिक साहब दी ना It's not healthy. ते एवें लगे आ काम अपने ध्यान ते मलिक साहब जिथे वो क्या ना बराड़ ते यार अब्बुल आलमीन कदी तो सच बोलिया करो ओहो मैं सल्ला गया मैं क्या यार लेकिन नासर ਸਾਹਿਬ साहब ਬਾਅਦ ਆ ਪੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲਾ ਸੱਤਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ भगवान भगवान साहब, भगवान भाई जी जी सर जी, आपसे एक सवाल पूछूं। ये तकवा की बारीक राहों पे आप आ गए या डेविड भाई आ गए? डेविड साहब अगे ने जनाब सरे फहरिस्त ने यानी आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मैं जो सही है। मगर मगर सही है, होती है बड़ी बारीक राहें, देख के ध्यान से पैर रखना है। वो पुलिस रात का सुना हुआ है ना। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ। तो जी अली भाई फिर क्या कहते, 5 रुपए की रसीद उनको दिखानी चाहिए इनको, ये जो उलमा बैठे थे मुकरम मोहतरम जनाब सारे। उलमा तो नहीं पता। वैसे तो नहीं दिखानी चाहिए, पर सर पे जूते मारने के लिए कोई हर्ज भी नहीं है। उनके ग्रुप के एक नहीं दोस्त मोहम्मद नीचे बैठे हैं। ये नहीं, ये जो आपकी बात है ना, इस तरह तो ये चीज स्टार्ट ही हो जाएगी कि हर बंदा दूसरे से पूछेगा भाई अपना सबूत दो, तो हर अली बंदा भाई एक पता दूसरे क्या, को सबूत ਮੈਂ देता ਤੇ फिरेगा। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे ਮੈਂ हो। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖਤਨੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। नहीं यार, ऐसे नहीं अली साहब पता क्या है? और मिर्जा साहब मेरी ने अर्ज सुनो यार, मेरी एक बात सुनो, बड़ी अहम है। जी जी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, नहीं दिखानी चाहिए, मगर वो जो बात की है ना कि जी अब फ़र्क कोई नहीं रहा जी आमिर नज़ीर में और अपने अली भाई में। सर ये इतनी की बेहुदा बात है, इतनी की बेहुदा बात है कि कोई इंसान अगर थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करके बोले तो मेरा ख्याल है कि वो ना बोल पाए ये बात। ये बहुत घटिया बात थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी चपेड़ ही है। वो आप वैसे भी देते होगे, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वो चपेड़ मारने के लिए। उनके ग्रुप के रहनुमा नीचे बैठे हुए हैं मून भाई, तो उन तक अगर पैगाम वो भी असल मैं जब मून भाई की वीडियो देखता हूँ ना माशाल्लाह, मून भाई ऐसे ऐसे मुखलिसाना वीडियो चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे मुखलिसाना ये वीडियो चढ़ाते हैं जमात की, जैसे ये बहुत ही मुखलिस अहमदी हैं। लेकिन जब ये इन लोगों के पास आके बैठते हैं तो इनके मुंह के अंदर से कोई लफ्ज निकलता कि यार कि मैं वीडियो बैठते इधर क्या अली बात अकबर साहब चंदे दी रसीद नहीं विखानी चाहिए। हज़रत मिर्जा साहब की किताब चो ना 1000 वारी लानत 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 और एक फोटो कापी करके उन्हें वहा दियो। ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे हाफिज साहब नीचे मैसेज है आपके लिए। ये कि डेविड आपके साहब पास ने फिर इल्म एक बहुत अच्छा मशवरा दिया। जी आप सब नीचे मैसेज है आपके लिए कि आपके पास माशाल्लाह बहुत इल्म है, बस इसे वेस्ट ना करें। ठीक है सर, नहीं करते ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਰਗੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਮੂਨ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ दीन का नाम भी यूज़ करते हो, मसीह अलैहिस्सलाम मन दावे भी करते हो, काम तुम लोग केड़े करते हो। ख़ास करके मून भाई आपकी वीडियो देखता हूँ मैं सुबह सुबह उठ के, कभी कभी आपने बड़े अच्छे अच्छे क्लिप चढ़ाए होते हैं हजूर की सवाल जवाब के, कभी कोई कभी कोई। तो ये तो जब आप इनके अंदर बैठे होते हैं तो वही आयत आ जाती है, वाइज़ल्लज़ीन आमनु कालू आमन्ना वाइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम कालू इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। इधर कहते हैं कि हम अहमदी हैं आप, लेकिन जब आप अपने शैतानों के पास बैठते हैं तो कहते हैं मैं तो मजाक में कर रहा था, मैं आप लोगों के साथ। नहीं आप सब बात बोल रहे हैं, मैं नीचे जाता हूँ, उन्हें ऊपर ले लें, वो भी अपना जवाब दे लें। नहीं कोई नहीं, जवाब चाहिए नहीं सर, हम सवाल कर ही नहीं रहे। तो सवाल तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो खाली बता रहे हैं सवाल क्या करने हैं इन लोगों से हमने।
सर बड़ी अच्छी आपने आला आला बातें की हैं। ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि वो हमारे जो हम खुद भी वैसे ही हैं कि अपने दोस्तों को ज़्यादा प्यार करते हैं और कई दफ़ा इंसाफ के तकाजे भूल जाते हैं। तो ये तो बात सही है, इंसानियत में ऐसी कमियां तो आ जाती हैं। सर यहाँ पे टीएमएस साहब बैठे हैं, अक्सर हमारे पास हमारे दोस्त हैं, ये सीसीडी होस्ट बैठा है, बल्कि ये जब भी कोई गलत काम करता है अली भाई साहब से पूछे, हम उसके मुंह पे बराड़ के ऊपर बैठ के डांट देते हैं हम लोग। ये कभी किसी की रिकॉर्डिंग चलाए, मैं कहता यार नहीं लानी, ये किसी की तस्वीर लगा दे किसी की बिगाड़ के, मैं कहता नहीं ला, किसी कल होमेटी के लगाने लगा था, मैं कहा नहीं लगानी, ये हमारा मौकफ ही नहीं है। हम अपने बंदों को कहते हैं, लेकिन जो जो नीचे बैठे हुए लोग, ये जिनकी ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है कि ये कल्ट है, ये एक माफिया है। इन लोगों को ना, इन लोग हुसैनी गुलाम है ये वाले, इन लोगों के अंदर हक बात करने की वो है ही, जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि ये ज़हनी मरीज है, ये बात कर ही नहीं सकते, इनको इतना डरा के रखा गया हुआ है। साहब की मैं गवाही दूंगा, टी अहमद साहब एक बड़े सच्चे आदमी हैं। इन्होंने एक दफा कहा कि मैंने हुसैनी की ब्रॉड पे नहीं आना, और वाकई ये नहीं आए। अब इन्हें 1 महीना हो गया इस बात को, लेकिन मैंने नहीं देखा कि ये एक दफा भी आए हों। आप अगर जाते हैं कि नहीं? आप जाते हैं मेरा ख्याल है। नहीं, मैं तो बैठा ही वहां पे होता हूँ। हालांकि आपने खुद ही कहा था, मैं जो हालांकि एक दिन मैं बैठा था, आप नीचे लिख रहे थे जो ऊपर बैठे हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। आजाद राजपूत साहब ने कसमें उठा के कहा था, मैं उनकी आईडी ब्लॉक कर छड़ी, डिलीट कर छड़ी, ये कर दिया वो कर दिया। अगर भाई ऐसी बातें ना बोला करें जो पॉसिबल ना हो, और फिर बाद में बंदा सोचे मैंने ऐसा बोला भी था। बहुत सच्चे आदमी है, सही मैं बात है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂਠਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂਠਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। यही फैसला होता है हो राणा साहब छा कि गए बाबा हो। हुसैनी की ब्रॉड जो है ना, वो आखिर में फिर निकल जाती है आगे। ਅਜੇ ਵੀ और ਮੈਂ ये ਉਸੇ हुसैनी ਸਾਹਿਬ साहब ਨੂੰ को भी ਕਿਹਾ पता ਆ, है। ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਖੰਦੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। चले, शुक्र है आपने ये वाली भाई बात भी बता दी। अली भाई, जी टीएमएल भाई, अली भाई, ये जो अभी मोहम्मद अहमद भाई ने ये बात की, एक दफा सुबह भी की थी इन्होंने, उसके बाद तो नहीं मैंने सुनी, लेकिन अभी दोबारा इन्होंने ये बात कही है। क्या वाकई ये अल्फाज कहे गए कि ये अली अकबर और आमर नजीर हमारे लिए एक जैसा हो गया, या हाँ उनकी जी, मर्जियाना मेरे को गुफ्तगू का ये रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग कितना दे देंगे, तुम सेंड कर देना वा। अच्छा फिर आप सब इसका ठीक। मतलब है कि हम आमर नजीर टी के अहमद साथ साहब, जाके बैठा ये तो करें कोई ऐसे। भी चीज नहीं है। वो जो तलत जहूर मलिक जब गालियां देने पे आता है तो फिर अहमदियों को कैसे पेलता है, वो नहीं कभी आपने सुनी, 3-3 दिन गालियां निकालता है। तो ये तो बड़ी छोटी बात है कि आमिर नजीर और फलाना बंदा एक जैसे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। वो तलत नहीं निकालता गालियां 3-3 दिन बैठ के, औरतों को भी और आदमियों को भी। और भाई वो 300 दिन भी निकाले, मैं मुझे क्या जरूरत है उधर जाके सुनने की। भाई जाके तो कोई नहीं सुनता, नीचे से गुजर भी रहा हो ये तो बंदा सुन, कान में पड़ ही जाती है। लो जी, मैं पिछले 2 महीने से कभी किसी ब्रॉड से नीचे से भी नहीं गुजरा, बैठे भी हूँ तो मैं सुनता भी नहीं हूँ, तबलीग भी बंद कर दी है। मुझे नहीं समझ लोग जाते भी क्यों हैं। मुझे आप देखे राजा साहब के उन्होंने बताया कि फलां बराड़ पे बैठे थे, हम तो देखते नहीं है। मुझे तो अपनी बराड़ का नहीं पता था, चल रही सुबह 9 बजे उठ कर देखा था हमारी बराड़ लगी हुई थी, तो मैंने आके पूछा यार तो बराड़ लोगों हमारे सुबह सुबह उठते हैं, रात को 24 घंटे किस बराड़ पे क्या हो रहा है, किस बराड़ पे कौन क्या बातें कर रहा है। नहीं आप सब वो ये थे एक आईडी आती है राजा मनान की, वो जैकेट के साथ फोटो लगाई हुई है वो, तो वो तो सिर्फ पुई पुई करता है। हाँ जी, वो किसी और रास्ते से बोलने की कोशिश करता है। नहीं आप सब के राजा साहब को भी वो सजेस्ट किया गया था जब उस ब्राड पे गए थे ना, तो उन्हें भी सजेस्ट किया ये हुआ था कि आप ना जाए ना, तो फिर वो भी नहीं जाते ना। अच्छा, पूरी बात ये है। हाँ। उसके बाद उन्हें भी समझाया गया था सीधे अल्फाज ये। ठीक है, लेकिन राजा साहब बैठे हुए थे अफजल उड़ैया साहब के साथ ना।
नहीं वो नहीं बैठे हो सकते, अफजल बड़ाई के साथ उन्होंने क्यों बैठना, वो तो नहीं न्यूट्रल ब्राड होनी है, वैसे उनकी ब्राड पे वो नहीं जाते। पूछे वाटर भाई से, वाटर भाई बताएं सूरत हाल सारी। सारी तो नहीं बता सकता, मैं अभी नीचे से ही गुजर रहा था, मैंने देखा बड़े प्यार से लगे हुए हैं, फिर वही ये सारे मिट्टियां सारे पूरियां चल सारे रही चुप कर जाओ, सारे चुप कर जाओ, मौलवी साहब आ गए। हैं। अच्छा जी, नीचे आ गए, हाँ नीचे आ गए हैं यार। मौलवी साहब ने कहना फिर हमला करता मेरे ते, इस बात पे हमला करता। सर ये जो सोशल मीडिया कमेटी बनाई है ना जमात ने, सारों से पहले वो कमेटी तो डिसॉल्व होनी चाहिए। वो कहते बड़ा सही बात है, सही बात है। और कनाडा में भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, और बड़े चौधरी वहां पे बन के बैठे होते हैं सारे, ते आप ही साडे दोस्त है ने, ते आप ही शिकायत लाते ने। नहीं वो गड़ी कमेटी है भी। राणा साहब जो आपके 4 दोस्त है ना सोशल मीडिया पे, उनमें से एक उसी कमेटी में है। सोशल मीडिया कमेटी, अच्छा ओहदेदार आते हैं ना थके हुए, वो सारे उस कमेटी के मेंबर हैं। अरे तो वाटर भाई, ये जो अफजल साहब का वो टेम्पर हाई हुआ है, उसके बाद ही है उससे पहले की बात है? भाईजान ये हुई हुई है, कुछ साल से शुरू हुई हुई है, लेकिन आपको जोर पकड़ रही है। लेकिन बात ये हो गई है, वो आप सारे काने हो चुके हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं समेत बाकी दिग्गज अफराद के भी कि उनके मुंह से कोई गलत बात ना निकल गई भी हो और आगे रिकॉर्ड भी ना हो गई हो, तो इसलिए वो किसी को कुछ कह नहीं सकते। नहीं वाटर भाई, आपकी बात नहीं, आप बात नहीं समझे मेरी ना, क्योंकि जिस दिन से उस बंदे ने ये शुरू किया हुआ है कि इन्हें जलाएं, इन्हें मारें या इस तरह की बयान दिया, बाद में उन्होंने अपना बयान भाई वापस ले लिया, ये बात भी सच है, पर उन्होंने उस टाइम वही बयान दिया था जो सब ने नीचे सुनने वालों ने समझा था। और ज़फरुल्लाह शाह फिर ऊपर तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आज थोड़ा सा एहसास दिलाया कि अब बंदा है ज़ात क्या बोल रहा तू। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि राजा साहब उससे पहले बैठे थे कि बाद में बैठे थे, ये सवाल है मेरा। अरे कल बैठे थे, मैंने ये पता लगा ऐसे को बाटा दसन दे, कौन दसन दे, कल बैठे थे, कल बैठे हुए थे, कल बैठे हुए थे। हाँ, तो फिर उधर इhtजाज होना चाहिए था उनकी इस बात पे, और सहतरीन इhtजाज होना चाहिए था कि सर हमें तो एहतजाज होता ना, लेकिन ये बात अच्छी है कि अब एहतजाज होएगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े कोई वो बन गए हैं एम्बेसडर टिकटॉक के ऊपर। एम्बेसडर उन्होंने मेरे हाथ आ लेंदे, तो एम्बेसडर ਨੂੰ भी मैं पूछांगा, अपनी अदालत लगाता है, अपनी एम्बेसी चलाई फिर रहा है। नहीं वाटर भाई, सबसे पहले ना मैं और आप अपनी हैसियत देख लेते हैं। हम जाते हैं अफजल साहब के पास, वो हमें नीचे से ही बोलना शुरू हो जाते हैं, शातम गुस्ताह। और जब राजा साहब जाते हैं उन्हें ऊपर बैठाते हैं और उन पे छात में तो कोई फतवा नहीं आता। तो हमारी जितनी हैसियत है ना, हम उतनी में ही रहते हैं, और ये जितने फतावा हैं ये हमारे लिए ही हैं, फिर उनके लिए नहीं है। साहब ने रमजान के महीने के अंदर ऐलान किया था एक ब्रॉड पे बैठ करके, वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने कहा था कि अफजल वड़ायत का बाइकाट किया जाए, उसके साथ कोई बंदा बात ना करे, ना उसको अपनी ब्रॉड पे बुलाए, ना उसके पास कोई जाए। तो अब आकर के उनके दोस्त ने बताया कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, लिहाजा अब राजा साहब जा सकते हैं। ये जो भगवान है और नियो है ना, इन्होंने एक दफा ना हुसैनी साहब की ब्रॉड पे की जबरदस्त किस्म की ना शातबियत। तो बात ये हुई कि मैंने बाइकआउट किया हुसैनी साहब की ब्रॉड का 90 दिनों का, और टिकटॉक की तारीख में मैं ही वो पहला और आखिरी बंदा हूँ जिसने आज तक कभी किसी चीज की बाइकआउट किया हो। बाकी ये राणा साहब ने किया था कोई महीने डेढ़ का बाइकआउट, लेकिन ये भी फिर आ ही गए थे। तो उसके अलावा सारे लपड़ गया ना, फिर जाके मैं गाला कढ़ लिया सी, अपना टाइम अपना गुस्सा कढ़ लिया सी, वो तो होर ते मैनूं किते लभदा नहीं सी। बाकी इतनी थरक होती है, कई दफा दिल करता है कि बस उड़ के टिकटॉक पे पहुंच जाए और जाके कोई अपनी चवल मारे और ऐसे लगे कि जैसे सारा इल्म का खजाना मैंने खोल दिया है। नहीं वाटर भाई, यस्टरडे आप उड़ के आए थे, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाली थी फौरन मैंने आपको एक्सेप्ट किया
और उसके बाद फिर जो आपने हराटे आपने सुनाए ना, तो ये ना बोलें, बस ये बोलें कि बस जाना है, हराटे सुनाएं या चवल सुनाएं, वो टेंशन नहीं है। तो यार वो मैंने नींद की दवाई खाई हुई थी, मुझे खुद नहीं पता लगा क्या हो गया मेरे साथ। वाटर तू ना सोया कर टका के हमें गोलियां खाता रहना नींद लगी। तो सर जी आप क्या खा के बैठे हुए थे रात को? नहीं वाटर भाई वो नहीं समझ मैं तो मुझे जी, वाटर भाई मुझे ये नहीं समझ आई कि विद इन 5 to 10 सेकंड इतने हराटे किस तरह हो सकते हैं। बस यार वो आपने मुझे कोई ना आपकी तरफ फीचर ऑन हो गया है, वरना मुझे कोई उठा ही नहीं सकता, तो वो पता नहीं सोते में मेरा हाथ लगा नहीं या क्या नहीं हुआ। भाई आपने खुद रिक्वेस्ट डाली थी और जैसे ही वही डाली मेरा थी हाथ लग वैसे गया ही होना है। उठाया था। अच्छा हाँ माशाल्लाह। जी, ऐसे नहीं हुआ हो ना, रिक्वेस्ट डाल के वो फौरन मैंने वाटर पे करवट चली ली होनी। होगी तो मेरी उंगली लग गई होनी है, इस तरह का चक्कर हुआ होगा। ठीक हो ये ठीक हो। वाटर साहब, ये उंगली भी कमाल की है, बड़ी बड़ी जगहों पे लग जाती है। आज अली भाई आज करो इतना मैंने प्यारा कैमरे निकाल दी सोते हुए। अली भाई आज इतना प्यारा मौसम है और इतनी प्यारी धूप निकली है कि अल्लाह ताला ने अपना सारा हुस्न निकाल के सड़कों पे बिखेर दिया है। सुभान अल्लाह, हर तरफ सुभान परी। अल्लाह, अल्लाह दे थालियां बनाई हैं ये चीज़ां ने। अभी यहाँ पे स्कूलों वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में छुट्टी हुई है, परियां ही परियां घूम रही हैं, परियां ही परियां घूम रही हैं। मैं जरा ड्रॉप सिंगल बंदे के अल्लाह ताला की खूबसूरती देखने के मसाइल ही हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको डबल करे और आपको दूसरी खूबसूरती भी अल्लाह की नजर आए। यकीन करें कि ऐसे सुकून आंखों को आ रहा है। लोगों ने काले चश्मे लगा लिए हैं धूप की वजह से, लेकिन मैं कहता हूँ यार अल्लाह का डायरेक्ट हुस्न देखो, ये अल्लाह की खूबसूरती है। सुभान अल्लाह। और हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, हम ना तुम्हें देखते हैं ना तुम्हारा हुस्न, हम तो बनाने वाले का कलम देखते हैं। ऐसे ही यही बात कह रहे हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाकई हजरत साहब ने बोला हुआ है, ये हम ही फेमस है। सुना तो ऐसे ही है कि उनकी तरफ मंसूब होता है। अच्छा फिर ठीक। बॉस लेवल की ठरकी ने वो मर्द सारे नहीं, मोहम्मद अहमद भाई जो शायर होता है वो शायर ऐसे ही होता है, और जो शायर है वो जो शायरी है वो एक फन है पूरा, उसे उस सेंस में लेना चाहिए। और वैसे भी मोहम्मद अहमद भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरे सामने से आ रहा है और मैं ऐसे नजरें नीचे जाके और सीधा उसमें ही जाके टच रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा है। हाँ जी, जिस तरह नॉर्मल आप जा रहे होते हैं वैसे जाएं। नहीं ऐसे ही है, एक शेर के कई माने, जिस तरह अरबी के कई माने लफ्ज़ के होते हैं, शेरों के भी बंदे के ज़ौक़ और मिजाज के हिसाब से माने तशरीह तफसीर बदल जाती है। एक बंदा दस रहा कहना मैं ट्रेन 'ਚ बैठा लंदन सफर कर रहा सी ते मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत औरत आके दुशीदा पै गई ते कहना मैं अपने नजरां थल्ले कर लिया, गजे बसर तो काम लिया, जो नजरां थल्ले की ध्यान पाया उन्हें अंडरवेयर को नहीं सी पाया, फिर मैं नजरां तां ही चुक ली। तो यहाँ पे ना मेरा एक दोस्त है, ये आपने ये तो छोड़ दिया आपने। अली भाई मेरा यहाँ पे एक दोस्त है, टैक्सी को चलाता है इधर, तो वो बताऊँ क्या कह रहा था। अभी लड़कियां 2-3 गुजरी बड़ी खूबसूरत सी, तो उनको देख के कहता है कि हाफिज साहब देखो रब ने किन्नी किन्नी सोहणियां कुड़ियां बनाईयां ने ते साडे नसीब दे विच नज़ीरां बशीरां ही आईयां ने। ये तो बात तो उसकी सच है। कहंदा कि झूठ तो नहीं। हाँ जी, कहंदा कि इन्नियां सोहणियां लड़कियां ने, इन्नी खूबसूरत दुनिया, लेकिन कहंदा साडे नसीब च कोई नज़ीरां ते बशीरां ही आंदियां ने। मैं कहा यार बस वो फिर दूसरा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੌਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਰੀਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4-5 ਸੂਏ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। नहीं अल्लाह ताला ने ये कैसे बना ली इतनी खूब लड़की। मैं हैरान कभी कभी देखूं कि इतनी सोहनी कुड़ी बनाना कोई नॉर्मल बंदे का काम नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम। बंदे का तो काम ही नहीं दे